اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور بھائی سب خیریت؟ جی الحمدللہ. رات میں راستہ دیکھ رہا تھا حضرت میں آپ کے کال کا. ارے بھائی اتنا نیٹ ورک ڈاؤن تھا کہ ہم کال کر رہے تھے, بزی بتا رہا تو کہنا چھوڑو انشاءاللہ کل. میرا کال بزی بتا رہا تھا. رات میں کتنے بجے کال کیا تھا؟ نہیں نیٹ ورک بزی بتا رہا تھا بھائی, وہ اس میں بتاتے ہی دقت کیوں چل رہی ہے. جی 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 اور سنا سب خیریت سے؟ آپ نے فون کیا تھا, کس مسئلے کے اوپر فون کیا تھا ذرا بتائیں گے؟ کس نے نمبر دیا؟ جی بھائی سب بتا رہے ہیں. آپ کا نام تھوڑا بتا دیجیے تاکہ بات کرنے میں آسانی رہتی. میں مجاہد ہوں. اچھا مجاہد بھائی. جی بھائی اصل میں یہ ہے, عمران بھائی نے آپ کا نمبر دیا ہے. اچھا عبداللطیف کا جو ساتھی ہے عمران بھائی, انہوں نے آپ کا میرا نمبر آپ کو دیا تھا. اب بھائی وہ کس کے ساتھی ہیں کس کے نہیں میرے کو نہیں معلوم. مطلب یہ آڈیو ان کی آئی ہوئی تھی, آپ ان سے بات کر رہے تھے تو وہی مطلب کہہ رہے تھے کہ نہیں مطلب کہ افو خان اور ندیم ملوی اور طلحہ سلفی اور ندیم خان تو یہ لوگ میرے کو فون نہیں کریں گے یہ وہ. تو میں نے کہا بھائی پتہ نہیں آپ سے بات ہوئی ہے کہ نہیں, میرے کو تو یاد نہیں ہے. تو وہی میں نے کہا یہ آپ سے بات کر لیتے ہیں. اچھا تو عمران بھائی کا جو مسئلہ چل رہا تھا میرا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے, جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ بات درست ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. ہاں جی حضرت, تو مجھے کوئی دلیل دیجیے نا, کیونکہ فرض ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت جس کا دو معنی نہ ہو, حدیث متواترہ جس کے سند کے اندر ہر زمانے میں 10 راوی سے زائد پاتے. نہیں وہ ارے میرے بھائی ہمیں سب پتہ ہے, آپ کا جو مطلب بھائی وہ اصول ہے اس کے حساب سے آپ کو آنسر دے رہے ہیں, آپ ٹینشن نہ لیجیے. ہاں جی دیجیے نا مجھے. جی مطلب خالی ہمیں یہ بتا دیجیے کہ آپ کا ماننا کیا ہے. آپ کا ماننا کیا ہے کہ امام کے پیچھے مطلب وہ ابو بھائی سنیے تو صحیح. میں عمران بھائی سے پوچھ رہا تھا تو انہوں نے میرا نمبر آپ کو دیا ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ ان سے جو بات ہونی تھی وہ آپ سے ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا؟ نہیں آپ کو کوئی بھی ٹاپک پہ بات کرنی ہے بھائی, آپ آرام سے کیجیے. تکلیف پہ, امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پہ, سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ, فقہ پہ, الحمدللہ. جی ٹھیک ہے ابو بھائی, آپ بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرا جو ماننا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں فرض ہے جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی امام کے پیچھے. نہیں ہم لوگ نہیں کہتے ہیں بھائی, اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے بھائی. ہم لوگ کی کیا اوقات ہے؟ ٹھیک ہے تو فرض ہے نا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا. ہاں فرض ہے. تو میری بات تو مکمل ہونے دیجیے. آپ جو بھائی آپ گھما پھرا کے بات مت کیجیے, ڈائریکٹ پوائنٹ پہ آئیے. اس کے اندر مقتدی کا ذکر ہو, فاتحہ کا لفظ ہو اور فرض قرار دیا گیا. ارے سب بتائیں گے میرے بھائی, تینوں نہیں پانچوں چیزیں ہوں گی اس میں. پانچ کون سی چیزیں سر میرے بھائی؟ امام کے پیچھے ہو سارے ٹائم کی بھائی, وہ نماز ہو چاہے وہ فرض ہو چاہے نفل ہو چاہے سنت ہو چاہے مطلب بھائی وہ امام کے پیچھے ہو چاہے امام کے پیچھے نہ ہو. جی آپ سمجھ لو, ہم ساری باتیں آپ کو بتائیں گے, آپ اس کی ٹینشن نہ لو. بس ہمیں اتنی چیز بتا دو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں آپ کا ماننا کیا ہے, کہ مطلب وہ امام کے پیچھے مطلب وہ سنت سے پڑھنا ہے. 1 منٹ. اہل سنت والجماعت حنفی ہوں, میرا تعلق دیوبند سے حیاتی ہے, اور اہل سنت والجماعت حنفی کا مسلک یہ ہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا نہیں چاہیے. بھائی یہ الگ ٹاپک ہو جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کے دیوبندی لوگ ہیں کہ نہیں, یہ الگ ٹاپک ہے, آپ اس کو نہ چڑھیے. میں بتاتا ہوں, اگر آپ اہل سنت والجماعت کی اہل حدیث ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک, اچھا ہاں ٹھیک ہے, چلو دلائل شروع کریے آپ. نہیں تو آپ کا ماننا کیا کہ مطلب وہ امام کے پیچھے مطلب کہ بھائی وہ پڑھتے ہیں ہم لوگ پیچھے مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے. ارے میرے بھائی ایک منٹ سوال تو آپ سنیے. امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے بھائی وہ دو ٹائپ کی, ایک ہوتی ہے بھائی وہ لاؤڈ اور ایک ہوتی ہے وہ سائلنٹ. تو ان دونوں میں نہیں پڑھنا ہے یا خالی ایک میں پڑھنا ہے؟ دونوں میں. امام 1 منٹ حضرت, مطلقاً کہہ رہا ہوں میں, امام کے پیچھے جب مقتدی کھڑا ہو تو امام کا قرات اس کے لیے کافی ہے, یہ اہل سنت کا حنفیوں کا یہ دعویٰ ہے. اچھا یہ حنفیوں کا دعویٰ ہے, تو مطلب یہ بھائی کہاں پہ اترا ہوا ہے حنفیوں نے, مطلب کہاں پہ اتارا ہوا ہے؟ وہ میں دوں گا نا, میرے دلائل کا جب موقع آئے گا. میں موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, بات کریں دلائل دیتے جائیے, ورنہ ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کے مطلب سے. بھی تو کہا نا حضرت فرض ہے, تو فرض کے دلائل تو مجھے دیجیے. ہاں چلیے بھائی, سورہ فاتحہ کے بغیر کسی کی نماز قبول نہیں بھائی.
एक बार और सुनिए, सूर्य फातिहा के बगैर किसी की नमाज कबूल नहीं होती, हिदाया जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 361। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी हाँ, हिदाया का देखिए, कोई भी मकतब फिक्र की आप कोई भी बात पेश करें ना तो उसका नहीं किसी का नहीं मेरे भाई, एक मिनट किसी का नहीं। एक मिनट सुनिए, आपने हिदाया लाइफ, चलो एक मिनट सुनिए तो सही। हिदाया के अंदर लिखा है कि वहाँ पे मुक्तदियों को भी पढ़ना चाहिए। सूर्य फातिहा के बगैर किसी की नमाज कबूल नहीं होती, हिदाया जिल्द नंबर 1 सफा 361। जब नमाज पढ़ा जाए तो सूर्य फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती है, ये तो सही बात है। वहाँ पर वजाहत की है मुक्तदियों को भी पढ़ना चाहिए। आप ये बात नहीं तो कौन सी होती है? नहीं तो कौन सी नमाज नहीं होती है? मैं तमाम नमाजों की बात कर रहा हूँ, इमाम के पीछे का नहीं है। वो इमाम के पीछे का नहीं है, ये आपको मेरे भाई कौन बताई था? आप दिखा दीजिए, हिदाया से दिखा दीजिए मुझे कि इमाम के पीछे सूर्य फातिहा पढ़ना हिदाया में लिखा है कहीं। अरे मेरे भाई आपको बता तो दिया मेरे भाई। कहाँ बताया? मुक्तदियों का जिक्र कहाँ है, इमाम का जिक्र कहाँ है, फातिहा तो किसके बारे में हो रही है? अरे मैं कह रहा हूँ इमाम के पीछे। अच्छा एक बताइए भाई, थोड़ा अकल से बात कीजिए, अकल से थोड़ा बात कीजिए, आप थोड़ा अकल से काम लीजिए। देखिए अकेले कोई भी नमाज पढ़ता है तो जाहिर सी बात भाई वो पढ़ता ही पढ़ता है सूर्य फातिहा, ठीक है, ये तो सबका मानना है। तो लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि इमाम के पीछे सूर्य फातिहा पढ़ना है कि नहीं, तो ये इमाम के पीछे पढ़ने के बारे में तो भाई ये बता रहे हैं कहाँ पर, तो ये सोचना पड़ेगा ना हिदाया में लगा सकते हैं। लीजिए भाई, आपको अपने मतलब की बात नहीं समझ में आ रही और आप दावे करते हदीस पेश करो, कुरान पेश करो। अप्पू भाई सुनिए ना, मैं अरे भाई कौन पीछे बोल रहा है उसी से बात करा दो डायरेक्ट भाई, उसी को समझाते हैं। अरे अच्छा, आप उनसे बात करेंगे? जी जी भाई। एक मिनट, अरे हदीस की क्या बात है भाई? चलो एक मसला, आप हिदायत की रूह से मान रहे हैं क्या? नहीं आपको दे रहे हैं, आप जिस चीज को मानेंगे पहले वो पेश करेंगे ना। तो पूरी हिदायत मानेंगे आप? है एक मिनट, चलो उनसे बात कर लो। हाँ मेरे भाई, हिदाया में अगर कोई बात ऐसी है जो मेरे भाई कुरान हदीस से साबित है तो उसको मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्या कह रहा था? जी भाई मेरा नाम अप्पू खान है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहसिन है। हाँ भाई बताइए मोहसिन भाई। मोहसिन नाम है मेरा। जी जी मोहम्मद मोहसिन भाई बताइए। तो मैं आपसे क्या कह रहा था बताइए क्या, आपके अदिल्ला शरईया कितनी चीजें? आपके अदिल्ला शरईया कितनी चीजें? अरे मेरे भाई हाँ भाई, कुरान है, सही हदीस है, इजमा है, कयास है। इजमा कयास कब से मानने लगे आप लोग? अरे मेरे भाई बचपन से मानते हैं। बचपन से मानते? और क्या, ये तो हमारे उसूल है मेरे भाई, ये तो लोगों ने चोरी कर लिए है ना हमारे उसूल। नहीं, आपके उलमा जो किताबों के अंदर लिख रहे हैं इसका मतलब वो गलत है फिर? नहीं उलमा फिर एक तरफ आप कहते हो जो आप लोग वो हो जीएम हो, गैर मुकल्लिद हो, उसके बाद मेरे आलिमों को कौन हमको पेश करते हो? भाई ये तो हमको पेश करना चाहिए ना आपको, आप लोग मुकल्लिद हो ना। आपके मशहूर आलिम दीन मौलाना मोहम्मद साहब जूनागढ़ी ने तरीके मोहम्मदी के अंदर जो बात लिखी, क्या लिखी? देखो हमारे पास दो हाथ है, एक में किताबुल्लाह, दूसरे में सुन्नत रसूलुल्लाह। अब ना तीसरा हाथ है ना तीसरी कोई दलील है, तो इसका मतलब आप जो तो मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी की बात नहीं मानते ऐसा? नहीं उनकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप उनकी बात को भाई वो समझे नहीं तो हम क्या करें, हम समझा दें उनकी बात आपको? नहीं, आप एक बात सुनिए ना, अगर नहीं उनकी बात आपने पेश की है तो उनकी बात आपको हम बता दे तो उससे साबित भाई ये हो जाएगा कि चारों उसूल है भाई, कुरान और सही हदीस भाई, ये हमारे दो उसूल है, दो हाथ है और इनमें ही सारा इस्लाम आ जाएगा मेरे भाई। नहीं तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो उसूल बताए, इसका मतलब कि फिर उनकी अकल नाकिस थी, जिसकी वजह अकल आपकी नाकिस है मेरे भाई, आप मेरे भाई किसी और की तफसीर को अपनी अकल से समझ रहे हो। भाई आराम से बोलिए, सुकून से बात कीजिए, ठीक है, यहाँ पे मतलब कोई वो लड़ाई नहीं हो रही है। आप मेरी बात को अगर सुनेंगे ना, मैं अगर सुकून में नहीं रहेगा कैसे बात करता तो आपको समझ में भी जाएंगे, सिर के ऊपर से जाएंगे आपके। नहीं मेरे भाई सर के ऊपर से आपके जा रही है उनकी बात मेरे भाई। मौलाना जूनागढ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हमारे दो हाथ हैं, ठीक है, और हमारे दो ही भाई वो उसूल हैं, और उन्हीं दो उसूलों में बाकी उसूल आ जाएंगे, पूरा इस्लाम इन्हीं दोनों में आएगा। अभी समझना पड़ेगा ना। देखो अभी आपने अब तो जो जाहिल है, जाहिलों को खोल खोल के बताना पड़ता है, नहीं कुरान है, हदीस है, इजमा है, कयास है। आप कौन से आलिम है, कौन से मतलब
फरागत की सनद हासिल की आपने? नहीं मेरे भाई, हम बहुत बड़े वाले आलिम है। अहले हदीस होना ही एक बहुत बड़ा एक मतलब इज्जत की बात है, फकर की बात है। अहले हदीस के बारे में बोलूं फिर? हाँ मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, पिराने पीर भाई, पिराने पीर फरमाते, मेरे भाई पिराने पीर फरमाते हैं कि आज के दिन में अहले सुन्नत वल जमात का जो नाम है वो अहले हदीस है। अहले हदीस आज के दौर में, आज का दौर हो कोई भी दौर हो मेरे भाई, बुनियतुत तालिबीन। हाँ सफा नंबर खोलो, बुनियतुत तालिबीन का। हाँ खोल लो, सफा नंबर 38 है, 38 के ऊपर ही बात लिखी हुई है। हाँ पेज नंबर आगे पीछे होंगे लेकिन किताब वही सेम है। आप खैर वापस टॉपिक पे आइए, ठीक है। तो मैं आपसे देखिए हमारे जो उसूल हैं वो 4 ही उसूल हैं, आप अपने उसूल बताइए। आपके 2 उसूल है बराबर, तो 2 उसूलों के अंदर आप कुछ सही हदीस पेश कीजिए या कुरान की आयत पेश कीजिए। अरे हम सब पेश करेंगे ना, आप कुछ पेश करोगे कि नहीं? आप खाली मतलब खाली वो दलील मांगने आ गए हो, आपके पास दलील नहीं है। हमारे पास तो दलीलों का अंबार है, पता है क्या आपको? अंबार है मेरे भाई, आपके मेरे भाई वो मसलक में उतरा हुआ है कि अगर कोई इमाम के पीछे सूर्य फातिहा पढ़ता है तो उसके मुंह में आग के अंगारे डाल दो, तो ऐसा कोई मुकल्लिद पैदा हो गया है जो भाई वो हमारे मुंह में आग के अंगारे डाल देगा? अगर कोई पैदा हो गया हो तो वो सामने आए माइका लाल। इमाम के पीछे का मसला अलग है और मुनफरिद का मसला अलग है। इमाम के पीछे ही सूर्य फातिहा पढ़ना है मेरे भाई, अकेले तो लोग पढ़ते ही हैं, अकेले तो लोग पढ़ते ही है ना मेरे भाई। अफू भाई मैं मुजाहिद बात कर रहा हूँ। हाँ मेरे भाई बताइए मुजाहिद भाई। जी अफू भाई, मसला देखिए, चलो मैं अहले हदीस बनना चाहता हूँ, मुझे ये मसला समझना है, आप अपने दलाइल दीजिए। अच्छा समझना है ना, तब ठीक है भाई, अब समझना है तो कील काल ना कीजिएगा। जी जी ठीक है जी। चलिए भाई देखिए, अल्लाह को चाहिए कुरान मजीद से, वो हम कहाँ से आपको देंगे वो आपकी टेंशन नहीं है, ठीक है। नहीं अपना दावा जो है अतिउल्लाह व अतिउर, हाँ मेरा दावा क्या है मेरे को याद है, आप हमको ना बताइए। हाँ ठीक है, अल्लाह सुब्हानो तआला मेरे भाई कुरान में फरमाते हैं कि वमा अताकुम रसूल व खुजू, यानी कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। वापस पढ़िए नजर। अब तुम अरबी पे आओगे, तुमको ये खींचना चाहिए था, हलक से बोलो खा भाई, मेरी अरबी अच्छी नहीं है, ठीक है। अब टॉपिक पे वापस आओ। आयत पढ़े आपने तो आयत फिर से पढ़िए जरा। अरे मेरे भाई, नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। और अल्लाह के नबी ने मेरे भाई को हदीस में फरमाया है, इससे पहले कुरान मानना है। अरे तो मेरे भाई कुरानी की तो आयत बता रहा हूँ कि नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे पढ़ो ना। तो पढ़ तो रहा हूँ तर्जुमा मेरे भाई उसका। हाँ बोलिए। कि अल्लाह के नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ, ठीक। तो ये दलील है। हाँ तो ये क्या है, दलील नहीं है भाई, ये अल्लाह के नबी की बात को आप नहीं लोगे, छोड़ दोगे। के मसले पर इमाम के पीछे सूरह भाई आपको समझना है या आपको कील काल करना है? आज तक आपने अपने इमाम के कॉल के ऊपर तो कील काल की नहीं है, ठीक। अब आपको अल्लाह के नबी की बात बता रहे तो उसमें आपको कील काल याद आ रही है। क्या मेंटल आदमी हो मेरे भाई, तुमको समझना है कि नहीं? कुरान के अंदर वजाहत नहीं है मतलब इस मसले की, आपको कुरान नहीं कुरान में है मेरे भाई, कुरान में भी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने 7 आयतें हैं जो बार बार दोहराई जाती हैं, ठीक है। वो एक आयत है, उसको हम बाद में आएंगे, पहले आपके पीछे है वो। अरे इमाम के पीछे हो चाहे अकेले हो मेरे भाई, नमाज की बात हो रही है ना। अभी इमाम के पीछे हम बता रहे हैं आपको मेरे भाई, आप इतना मतलब भाई वो फड़फड़ा कह रहे हो मेरे भाई, आप इतना फड़फड़ा कह रहे हो। आप सुनो ना मेरे भाई, भाई मैंने फोन किया है ना। के अंदर अरे बड़े बड़े बोल बच्चे, अरे मेरे भाई बड़े बड़े बोल बच्चे से कुछ नहीं होगा, नशे कतई और ये वो तो आएंगे नहीं आता। आपका उसूल क्या है? आपका उसूल हम बताएं क्या है? अभी आप भाग जाओगे फोन काट के, आपका उसूल बताएं। मैं भागूंगा नहीं इंशाल्लाह। आपको इस आपका उसूल है इमाम का कॉल, इमाम के कॉल के अलावा आपको किसी चीज की भाई वो कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब बताइए आप। अच्छा इस पर बात करना है आपको? इस पे बात भाई हम सबसे बात करेंगे, तुमने किस पे बात करना है? 1 मिनट, मेरे को किरात के मसले पे बात करनी है। आपका दावा है कुरान और हदीस, तो पहले इस मसले में कुरान की वजाहत चाहिए सराहतन। अरे मेरे भाई मेरा उसूल है, मैं अपने उसूल से बात करूंगा ना, तुम होते कौन है बीच में इंटरफेयर करने वाले यार? तो मतलब अजीब मंटर नहीं, मतलब नहीं, क्यों कुरान छोड़ दिया मेरे भाई? कुरानी तो कह रहे अल्लाह की नबी की बात मानो। इस आयत अरे मेरे भाई कुरानी तो कह रहे अल्लाह की बात मानो। अब मैं आपसे पूछूं कुरान में कहाँ लिखा हुआ है सेब खाओ केला खाओ,
अब क्या आप साबित कर दोगे? उसके लिए अल्लाह के नबी के ऊपर आना पड़ेगा ना। अजीब पागल है, जब उसूल नहीं समझते तो बात क्यों करते हो? भाई तुम किसी का जवाब ना दो, तुमको समझना है कि नहीं इमाम की पीछे सूरह फातिहा पढ़ने का मसला। अच्छा चलो अप्पू भाई, या तुम लोगों को परेशान करते हो फोन करके, बहुत बड़े अपने आप को अल्लामा समझते हो, तुमको आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बात करते हो। पहले हदीस जो अपने आप को पहले हदीस अल्हम्दुलिल्लाह है, आलिम है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मुकल्लिद जाहिल नहीं है। एक आयत पे तो हम पेश करेंगे, अपने हिसाब से पेश करेंगे ना भाई, हम तुम्हारे को नौकर तो है नहीं कि तुम जो कहे तो वो हम पेश कर दें। भाई हम अपने हिसाब से बात करेंगे ना, अरे हम अपने हिसाब से बात करेंगे ना। अप्पू भाई आप होते कौन है बीच में टोकने वाले मेरे भाई? अच्छा अप्पू भाई आपकी मुकम्मल बात होने दो, फिर मैं बोलता हूँ, आप ना बोले फिर। हाँ ठीक है, हम बोल रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं भाई, वो अल्लाह ताला भाई किस लोगों से फरमाते हैं, उम्मत से फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जो तुमको दे उसको ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। तो अल्लाह के नबी ने हदीस में कहा है कि उसकी नमाज नहीं जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। और ये हदीस कहा है कि भाई ये सही बुखारी किताबुल अजान और इसका जो नंबर है 756 है हदीस नंबर, ठीक। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन आता है कि यहाँ पे इमाम के पीछे कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है भाई, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। तो जिसको भी अरबी आती होगी वो बिल्कुल आसानी से चीज को जान जाएगा, ठीक है। अब एकदम बहुत आप सुनिएगा जी। अरबी में जो इसके अल्फाज हैं वो ये हैं कि ला सलाता, उसकी नमाज नहीं। किसकी नमाज नहीं, इसके बारे में हदीस में नहीं आ रहा है। तो इससे ये साबित होता है ये आम हुक्म है, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए, सबके लिए। ला सलाता, उसकी नमाज नहीं। किसकी, इसके बारे में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये आम हुक्म है। उसकी नमाज नहीं जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। अब ये जो हदीस है ये इमाम के लिए, मुक्तदी के लिए, मुनफरिद के लिए, इसमें तीनों शामिल हो गए, ठीक। और ये जो हदीस है मेरे भाई ये ऐसी किताब की है बुखारी की भाई, जिसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी, ठीक। और इसके जो अल्फाज हैं, इसके अल्फाज ही इस चीज की भाई वो दलील देते हैं कि ये सबके ऊपर आम है, चाहे भाई वो फर्ज हो, नफील हो, जनाजे की नमाज हो, सुन्नत हो, कोई भी हो। अल्फाज जो इसमें आया है वो आया हुआ है भाई वो ला सलाता, तो यही दलील देता है। लेकिन अब लोग इसमें अपनी अकल पेश करते हैं, नहीं इमाम का अल्फाज कहाँ है, मुक्तदी का इमाम कहाँ है, और वो फर्ज का जिक्र कहाँ है, नफिल का कहाँ है। तो ये उनको दलील देना है ना, मेरे को नहीं देना। मैंने आपको आम बिल्कुल बता दिया। और जो ये हदीस है इसको अगर कोई खास करने की कोशिश कर रहा है तो उसको दलील देना पड़ेगा, नहीं भाई ये खास है, ये इमाम के पीछे के लिए नहीं है, ये बिना इमाम के पीछे के। भाई बिना इमाम के पीछे तो कोई भी इंसान हो वो सूरह फातिहा पढ़ता ही पढ़ता है, लेकिन जो मैटर है इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने का है ना, तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के लिए और अल्लाह के नबी ने खुद 3 बार कहा कि जो शख्स भाई वो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। एक बार नहीं 3 बार कह रहे हैं। तो जब अल्लाह के नबी 3 बार कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इस नमाज की अहमियत होगी। और जो सहाबी है अल्लाह के नबी की बात तो भाई वो सहाबी को आएगी समझ में। तो मेरे भाई अबू हुरैरा से एक चचा के भाई वो पूछते हैं कि अगर हम इमाम के पीछे हो तो वो सहाबी फरमाते हैं कि जो ये सूरह फातिहा है उसको आहिस्ता से पढ़ो। तो सारी बातें एकदम साफ साफ है भाई ये फिका से भी साबित है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है, अल्लाह के नबी की हदीस से भी साबित है। अब इसमें आपको दिक्कत क्या है, ऑब्जेक्शन क्या है? जो मैंने आपको हदीस पेश की है, आप इसके ऊपर कोई भी सवाल हो आप आराम से कीजिए, आप बोलिए। जी जी भाई अप्पू भाई आपकी बात हो गई मुकम्मल? जी जी भाई, जो हमने आपको हदीस पेश की उस पर बात कीजिए। 1 मिनट। आपने एक आयत पढ़ी कुरान मजीद की जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह के नबी जो बात तुम्हें बताए उसे मान लो, ठीक है। आपने ये दलील पेश की, उसमें ना सराहत थी, ठीक है चलो अल्लाह के नबी की बात है हम मानते हैं, ठीक है ना। मेरी बात जब तक मुकम्मल नहीं होती, जैसे मैंने आपकी बात खामोशी से सुनी, आप भी मेरी बात खामोशी से सुने, ठीक है। बोलो भाई जल्दी बोल, बच्चन मत दो। और फिर मेरी बात मुकम्मल होने के बाद में आपको जो इश्काल है फिर आप वो पेश करें इंशाल्लाह। मैंने जो आपको दलील दी है इसके ऊपर आपको कोई एतराज है या इसको आप मानते हैं? सही बयान कर रहा हूँ ना हज़रत, आप हाँ तो बयान कीजिए भाई, हम खामोश है, टॉपिक से ना भागिएगा बस आप। जी हाँ टॉपिक से नहीं भाग रहा हूँ हज़रत। अब देखिए मैं जो पेश कर रहा हूँ, आपने तो एक आयत पेश की, सबसे पहले मैं आयत पे आता हूँ।
آپ نے جو آیت پیش کی نا اس میں امام کا ذکر ہے، نہ قرات کا ذکر ہے، نہ فاتحہ کا ذکر ہے، نہ مقتدیوں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ بات معلوم پڑی کہ قرآن مجید کے اندر صراحتاً یہ مسئلہ موجود نہیں ہے. اب یہ جو بات آپ نے حدیث مبارکہ سے پیش کی ہے، چلو اسے ہم مانتے ہیں اور اس پہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گا، لیکن میں سب سے پہلے آیت پیش کرتا ہوں. ہیلو. ہاں بھائی ابھی آپ نے کہا کہ بولنا مت، اب آپ کہہ رہے ہو ہیلو ہیلو. مجھے لگا کہ فون کٹ ہو گیا کیونکہ فون کی لائٹ نہیں بھائی فون ہم نہیں کاٹیں گے انشاءاللہ. اگر فون کٹے گا تو آپ کی اور سے کٹے گا، ہم نہیں فون کاٹیں گے. ہاں جی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 204. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اس آیت کی تشریح دو صحابہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کے اندر، فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ایک روایت کے اندر آیا ہے، بخاری شریف کی ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جو میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت. اب دو صحابہ اس آیت کی تشریح بیان کر رہے ہیں. حضرت سعید بن زبیر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ آیات نماز کے لیے نازل ہوئی ہے. اس کا حوالہ آپ لکھ لیجئے، تفسیر ابن ابی حاتم حدیث نمبر 8733 8733. اس کی اسناد یعنی سند جو ہے وہ صحیح ہے، مطلب سند، اسناد بول دیا جمع کا ہو گیا، سند صحیح ہے. اسی کے تعلق سے دوسرے صحابی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. وہ انہوں نے مقتدیوں سے فرمایا کہ شاید کہ تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو. کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو مقتدیوں نے کہا ہاں. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو تم کان لگا کر غور سے سنو اور خاموش رہو. کبھی آپ حوالہ لکھ لیجئے، تفسیر ابن ابی حاتم حدیث نمبر 8730. اس کی سند صحیح ہے 8730. اس کی سند صحیح ہے. تو آیت سے یہ معلوم ہوا دو صحابہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ امام کے پیچھے ہو تو خاموش رہو، کان لگا کر غور سے سنو. آپ نے جو حدیث مبارکہ پیش کی ہے بخاری شریف آپ نے کہا کہ یہ صحیح کتاب ہے، اس کو سبھی مانتے ہیں. تو بخاری شریف کے اندر کے جو الفاظ ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہاں پر روایت ختم ہو چکی ہے. اس سے یہ معلوم پڑا کہ اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. ٹھیک ہے. اب میں کی نماز نہیں، ایک منٹ میری بات مکمل ہونے دیجیے. تو میرے بھائی کتنی دیر آپ بولیں گے؟ میرے بھائی 15 منٹ آپ بولتے جائیں گے کیا؟ آپ نے آیت پیش کی، میں نے آیت پیش کی، آپ نے جو یہ آیت پیش کی ہے یہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی. ایک منٹ سنیے تو صحیح. ارے میرے بھائی جو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اس پہ ہم بعد میں آئیں گے، پہلے خاموش نہیں کہہ رہے حضرت آپ. ارے تو میرے بھائی کتنی دیر بولیں گے؟ ایک کام کیجیے، 1 منٹ بھائی آپ بول لیجیے، 1 منٹ ہم بول لیتے ہیں. ایسے تو پھر آپ مطلب پورا بھائی وہ لیکچر دے دو گے، ہم آپ کی بات ہی بھائی وہ سنتی رہ جائیں. مطلب آپ نے کہا تو میں سن لوں، وہ لیکچر نہیں ہوں گا. جب میں کہنا شروع میں نے آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کی، آپ نے پورا اس کے اوپر بھائی وہ لیکچر دے دیا. آپ نے آیت نہیں پیش کی، میں نے آیت پیش کی. دو صحابہ قرآن کی آیت بھائی نہیں ہے سورہ حشر کی، یہ بتائیے. جی میرے بھائی جو میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کی تھی، کیا وہ قرآن کی آیت وہ ہے کہ نہیں؟ آیت اس کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ تب آئیں گے جب قرآن میں مسئلہ نہ ہو. میرا مسئلہ آیت کو تو آپ مانتے ہیں نا، آیت کو تو آپ مانتے ہیں نا کہ وہ تھی قرآن میں. ہاں جی، قرآن کی آیت کو کافی بھی جھٹلا سکتا ہے. تو تھی نا آیت نا، قرآن میں وہ آیت تھی نا. ارے اہل سنت والجماعت کے اوپر بعد میں آئیں گے. آپ پہلے یہ بتائیے جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ قرآن میں تھی یا نہیں؟
कुरान में वो आयत थी जो मसला चल रहा है वो ठीक है, बस अल्हम्दुलिल्लाह आपने मान लिया कि उसमें थी, बात खत्म हो जाती। तो अब ये कह रहे हैं कि आपने कुरान नहीं पेश किया, बात चल रही है, वो आयत उस मसले में नहीं थी। मैंने तो आज जो आयत पेश कर रहे हैं वो भी इस मसले की नहीं है, ये भी इस मसले की नहीं है। हाकिम के अंदर रिवायत मौजूद है। अच्छा, हाकिम पे बात आएंगे। हाँ ठीक है, लासलम यकरा बिफातिहतिल किताब, इस्लाम हम तक पहुंचा है तो ये ताबई तबे ताबई इनसे हम तक पहुंचा है, तो उनकी बात मानी जाएंगी जो ताबई तबे ताबई है। इसके ये उसूल आप कहाँ से लाए? ये उसूल आप कहाँ से लाए? रावी है अरे ये उसूल आप कहाँ से लाए मेरे भाई? नमाजी के लिए है भाई, ये उसूल आप कहाँ से लाए कि जो मतलब वो इस्लाम पहुंचा है वो ताबई और तबे ताबई से पहुंचा है, तो इनकी बात को मानेंगे? अल्लाह के नबी की बात को छोड़ दें। अल्लाह के नबी की हदीस पेश करता हूँ, खैरुन्नास करने भाई क्या क्या आप पेश करोगे? एक ही चीज पेश करो, उसके ऊपर बात करो, आराम से बात होगी। आप मेरे भाई टेंशन ना लो। आपने जो हदीस पेश की उसमें अब आप चुप हो जाइए, अब आप चुप हो जाइए भाई। अब 1 मिनट अब आप रुक जाइए। अरे आप कर लीजिएगा, अगला टर्न आपको देंगे, अगला टर्न आपको देंगे मेरे भाई, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए मेरे भाई, घबरा क्यों रहे मेरे भाई? इमाम बुखारी के उस्ताद है। अरे भाई घबराइए मत, घबराइए मत। अरे मेरे भाई घबराइए मत। क्या वो जिन सवार हो गया क्या मेरे भाई? अरे जिन सवार हो गया क्या मेरे भाई? अच्छा ठीक है। औज़ु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे मेरे भाई औज़ु बिल्लाह पढ़ लीजिए मेरे भाई, औज़ु बिल्लाह पढ़ लीजिए, जिन उतर जाएगा। अब हम बोले भाई, आपने जो पहली तरीके तो आप बोलते जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ खामोश रहिए, खामोश रहिए, आप बोलते जा रहे हैं। लिमन आम है, आम है ना, अभी आम को हम अभी मैंगो बना रहे हैं, अभी आप परेशान न होइए, आम को मैंगो बना रहे हैं अभी हम। आप अरे सुनोगे कि मैं फोन काटूं यार? पागल वागल हो तो क्या भाई? यही तुम लोग के साथ बात करने में भाई अच्छा नहीं लगता है। बोलते या तो सामने वाले की सुनते नहीं हो। बोल लीजिए भाई आपने जो दलील पेश की, 4:04 हो रहे, मैं 5 से पकड़ता हूँ, आप 4:10 तक बोल लीजिए, फिर मैं 4:10 से मैं बोलता हूँ, 15 तक आप खामोश रहेंगे। हाँ भाई, आपने जो ये आयत पेश की है, ये कुरान को आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश किया है, और आप खुद भी इससे मतलब भाई वो गुमराह हो रहे हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। कुरान की जो आयत आपने पेश की है, सूरह आराफ की आयत नंबर 204, कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान को लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ठीक, तो मेरे भाई सबसे पहली चीज तो आपको बता दें, जो ये आयत है भाई, ये मक्की आयत है, और जो नमाज मतलब भाई वो फर्ज हुई है वो मदीना में हुई है, तो इसका उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है, अगर आप इस आयत की अगली जो आयत है यानी कि आयत नंबर 205, तो ये आयत नंबर 204 की ये मातियत है, क्योंकि आयत अगर भाई वो 204 अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि अल्लाह ताला आयत 205 में भाई वो कहते हैं कि अपने रब को अपने दिल में सुबह व शाम के वक्तों में डरते हुए और हल्की आवाज के साथ याद किया करो। तो इसको आपने क्या छोड़ दिया। और जो मेरे भाई के हनफियों का उसूल है, ये भी आपको हम बता देते हैं कि जब दो आयतों में, ठीक है, कि जब दो आयतों में भाई वो मारिज अगर वाक़े हो तो इस वक्त दोनों आयतें साकित होंगी और हमें हदीस की तरफ जाना पड़ेगा, रुजू करना पड़ेगा। और जो जाला उसूल आपका कहाँ उतरा हुआ है, या आपका उतरा हुआ है भाई ये नूरुल अनवार में 157 पे। और दूसरी चीज मेरे भाई, जो आप इससे मतलब भाई ये दलील पकड़ रहे हैं तो आप खुद ही इस पर अमल नहीं करते हैं। अगर मान भी लिया जाए कि ये इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ने के लिए नाजिल हुई थी, चलिए मान लिया बैठ के तौर पे, तो एक बार फिर साथ सुनिए कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान को दिल को लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। तो इमाम साहब जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उस समय आप लोग भाई वो आराम से एकदम भाई वो खामोश हो जाते हैं, लेकिन जब इमाम साहब भाई वो जोहर में असर में भाई जब वो सूरह फातिहा पढ़ते ही नहीं है तो आप क्या किस कान लगा के सुनते हो भाई? जब इमाम साहब खुद ही चुप है तो आप सुनते क्या हो कान लगा के? तो इससे ये साबित होता है कि इस आयत को आप लोग जबरदस्ती वहाँ पे फिट कर रहे हो। और दूसरी चीज ये कि जब भाई कुरान को पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो इसमें से अल्लाह के नबी ने वो
سورہ فاتحہ کو خاص کر دیا ہے. ٹھیک, تو جب اللہ کے نبی نے سورہ فاتحہ کو بھائی وہ خاص کر دیا ہے تو آپ کون ہوتے اس کو عام کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ سورہ جمعے کی آیت نمبر السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بھائی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لا صلاۃ یعنی کہ اس کی نماز نہیں, تو کس کی نماز نہیں ہوئی اس کے بارے میں تو آیا نہیں حدیث میں, تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو معنی ہے وہ اوپن بتا رہا ہے. ایک منٹ سنیے ابو بھائی, ایک منٹ ذرا بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہوگی نا تو مسئلہ سمجھ میں آئے گا, ورنہ بات بہت لمبی ہوگی, فیصلہ کچھ بھی نہیں ہوگا. نہیں فیصلہ ہو جائے گا میرے بھائی, فیصلہ ابھی آپ خود اپنی زبان سے کریں گے کہ آپ کو بھائی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. یہ بخاری کی روایت ہے. ابو بھائی سنیے, آپ میری بات سنیے. ہاں تو بخاری کی حدیث ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں مسلم کی ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے نا, بخاری صحیح بخاری کتاب الرحمن حدیث نمبر 756. کس نے کہا اس کو کہ یہ عام ہے؟ کس نے کہا؟ اس کے عموم ہونے پر جو حدیث کے الفاظ ہیں لا صلاۃ, یہی دلیل ہے کہ یہ عام ہے, کیونکہ یہاں پہ خاص نہیں کیا گیا ہے. ایک منٹ سنیے تو صحیح, یہی روایت کے تعلق سے میں آپ کو صحابی پیش کر رہا ہوں اور دو ایک تابعی پیش کر رہا ہوں اور امام بخاری کے استاد پیش کر رہا ہوں. آپ بھی تو پیش کرو نا کہ ہاں تو چلیے ٹھیک ہے بھائی. امام خطابی بھائی انہوں نے فرمایا ہے کہ جو یہ حدیث ہے, امام خطابی ہاں وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے صرف عام کا ہی بھائی وہ جو آتی ہے بات وہ عام کا آرڈر ہے اور اس سے کسی فرد کو خاص کرنا بغیر کسی دلیل کے جائز ہی نہیں ہے. تو جب تک آپ دلیل ہم کو نہیں دیں گے تب تک ہم کیسے اس کو بھائی وہ ہم خاص کر دیں گے؟ آپ ہم کو دلیل دیجیے. دلیل ہے کیا سر آپ کے نظر میں صحابہ دلیل ہے؟ بھائی صحابہ دلیل ہے تو صحابہ سے تو بھائی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے. اچھا تو آپ نے زیادہ سمجھا, صحابہ نے نہیں سمجھا تھا؟ تو صحابہ نے بھائی اچھے سے سمجھا, تبھی تو میرے بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو لیکن اپنے دل میں پڑھو. اس سے قابل نہیں دوں گا, مسلم شریف کی روایت سمجھ جائیے, لا صلاۃ آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا. ہاں تو آپ صحابی کو بیچ میں کیوں لائے؟ ایک منٹ, حدیثوں کو آپ نے زیادہ سمجھا کہ صحابی نے زیادہ سمجھا؟ بھائی صحابہ نے ہم سے بہت زیادہ سمجھا, تبھی تو صحابہ نماز کے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. صحابی رسول کیا فرمانے سنیے نا, تو وہی تو میں بتا رہا ہوں نا, کے تعلق سے یہی روایت کے تعلق سے تو ترمذی میں آپ کتاب کے تعلق سے حضرت جابر کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلے نمازی کے لیے ہے, یہ اکیلے نمازی کے لیے ہے, امام کے پیچھے ہو تو نہ پڑھے. تو کیا اللہ کے نبی نے کیا معاذ اللہ بھائی وہ جھوٹ بول دیا کہ میرے پیچھے کچھ مت پڑھو سوائے سورہ فاتحہ کے؟ صحابی سے پوچھو آپ, جابر رضی اللہ تعالیٰ نے. صحابی بڑے یا اللہ کے نبی بڑے؟ اللہ کے نبی صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں صحابی نے کہا کہ نہ پڑھو, تو ہم تو اللہ کے نبی کی بات کو مانیں گے نا جو صحیح سند سے ثابت ہے. آپ کہیں کی ضعیف حدیثیں لے کے آ جا رہے ہو. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, ہاں اللہ کے نبی. ترجمہ پڑھیے, ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ ہاں بھائی اس کا ابھی جو آپ نے پڑھا ہے لا صلاۃ لمن, تو اس کا مطلب وہ معنی کیا ہے؟ ہاں اس کا معنی نا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ ارے حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں تو میں صحابی سے ترجمہ پڑھوں تو غلط ہے کیا؟ میرے بھائی حدیث کا ترجمہ آپ سے پوچھا ہوں, پھر آپ صحابی پہ جائیں گے تو مجھے بھی بھائی وہ آنا پڑے گا صحابی پہ. تو غلط کیا ہوگا. تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں, جب میں آپ کو صحابی کا بھائی میں اقوال پیش کروں گا تو آپ بھی نہ بھاجیے گا. نہیں تو مسلم شریف کی روایت تو بات ہی نہیں چل رہی نا, آپ ابو ہریرہ کی روایت پیش کریں گے. تو عبداللہ ابن مسعود کی حدیث آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ میں بھی آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا. آپ صحابی کی حدیث پیش کر, ہاں تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں کیا ہے اس کا ترجمہ؟ ہاں امام ترمذی کے اندر حضرت جابر روایت کا ترجمہ کر رہے ہیں, کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی, کوئی رکعت فاتحہ کے بغیر. لفظ فاتحہ ہے. اچھا جو رکعت نہیں جو
नहीं तो भाई ये रकात है, रकात ये कहाँ से अरबी के कौन से पोर्शन से लाए जी भाई? इसमें तो आया हुआ है ला सलाता, उसकी नमाज नहीं, तो नमाज की बात हो रही है मेरे भाई, रकात की बात नहीं हो रही। रकात आप कहाँ से लाए? और नमाज में रकातें नहीं होती है, साहबी को नहीं पता था। नहीं तो आपको नहीं पता है, आपको नहीं मालूम है? एक मिनट, यहाँ पे ऐसा मालूम हो रहा है कि आप साहबी पे उसकी नमाज नहीं जो फातिहा नहीं पढ़ता, आप कह रहे हो कि नहीं, साहबी कह रहे हैं कि उसकी रकात नहीं, तो हम भाई ये हदीस के अल्फाज को माने या आपकी झूठी बात को माने? अच्छा, रकात अगर न हो तो नमाज होती है क्या? वो अलग टॉपिक है ना। आप पहले इस पे तो आइए कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है, तो हम दूसरे टॉपिक किताब के बारे में भाई सलाद का माना क्या होता है? सलाद का माना क्या होता है? नमाज होता है कि नहीं होता है? सलाद का माना क्या होता है? रकात होता है कि नहीं? किसका माना? अरे सलाद का माना क्या होता है? नमाज होता है कि नहीं? एक मिनट होल्ड कीजिए भाई। हेलो, अच्छा एक मिनट सुनिए, अगर एक मिनट होल्ड करना भाई। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए ना, आवाज आ ठीक ठीक ठीक, अच्छा ठीक है, हमारे मेरे साथ आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं। हाँ भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ सलाता का माना क्या होता है? सलाद जो है अरबी में सलाद किसको कहते हैं? नमाज को। तो बस तो आप क्यों कह रहे हैं कि वो रकात नमाज बिना रकातों के होती है क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ। तो ऐसे तो मैं पूछूंगा नमाज बिना वजू के होती है कि नहीं, वजू बिना उसके होता है कि नहीं, गुस्ल बिना ईमान के होता है कि नहीं, तो ये तो बहुत आगे पहुँच जाएगी ना। अप्पू भाई आप खुद ही कंफ्यूज हो मेरे भाई। आपने ज्यादा समझिए। तो अल्लाह के नबी ने सहाबी को कहा ना मेरे पीछे सूरह फातिहा पढ़ो, सूरह फातिहा के अलावा कुछ मत पढ़ो। तो सहाबी क्या फरमा रहे? भाई आप अभी तक इतनी देर से एक चीज नहीं साबित कर पा रहे हो, खाली बोल वचन देते रहते हो। आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बात करने लगते हो। क्या है मेरे भाई, क्यों लोगों को परेशान करते हो? अप्पू भाई उसकी नमाज नहीं तो किसकी नमाज नहीं? मैं आपसे इतनी देर से पूछ रहा हूँ। उसकी नमाज नहीं, उसकी नमाज नहीं, उसकी नमाज नहीं तो किसकी नमाज नहीं? बुखारी की रिवायत मेरे भाई बुखारी की हदीस है, सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 756, उसकी नमाज नहीं जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता, तो उसकी नहीं तो किसकी? किसकी नमाज नहीं? कहाँ जिक्र आ रहा है इस हदीस में मेरे भाई? इसकी नमाज नहीं सहाबी बता रहे हैं, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहाँ बता रहे हैं मेरे भाई, कहाँ बता रहे हैं? कहाँ लिखा है? बुखारी में लिखा हुआ है? बात नहीं होती फातिहा के बगैर लेकर क्या करें? अरे बुखारी में लिखा है ये, अरे बुखारी में लिखा है ये, कहाँ लिखा है जो आप पढ़ लो? तिरमिज़ी शरीफ में है। अरे अल्लाह के बंदे, मैं आपसे कहाँ की बात कर रहा हूँ? आप कहाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कबूतर की, आप जा रहे हो कौवे के ऊपर। वाला एक मिनट सुनिए, आप एक ही किताब पे बात करो। कुरान पे बात करना है तो कुरान पे बात करो, अबू दाऊद पे बात करना है अबू दाऊद पे बात करो, तिरमिज़ी पे बात करना है तिरमिज़ी बात करो, बुखारी पे बात करना है बुखारी बात करो। लेकिन आप इधर उधर भाग रहे हो। यही रिवायत ला सलात लिमन लम यक़रा फातिहतिल किताब जो बुखारी में, वही तिरमिज़ी में है, और तिरमिज़ी के तो तिरमिज़ी में मेरे भाई जमा बयान कर रहे हैं। तो मेरे भाई तिरमिज़ी की जो हदीस अभी हमने आपको दी थी कि उबादा बिन सामित वाली, तो उसमें भी यही अल्फाज है कि मेरे पीछे सूरह फातिहा करो, सूरह फातिहा पढ़ो। फिर वही चीज, अब फिर भाग रहो। अगर आप तिरमिज़ी पे आओगे तो हम भी तिरमिज़ी पे आएंगे, अगर आप अबू दाऊद पे आओगे तो हम भी अबू दाऊद पे आएंगे। तो भाई आप एक काम करो, ठंडा पानी पी के फैसला कर लो कि आपको किसके ऊपर बात करनी है। मुझे खुशी हो रही है कि खुशी होगी मेरे भाई, हम साहबी को नहीं छोड़ रहे हैं, हम तो हदीस को पकड़े हुए हैं। साहबी ने ज्यादा ही समझा है तुझसे और मुझसे। तो वही तो कह रहे हैं, साहबी खुद भाई वो खुद कह रहे हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ा करो। पढ़ो फातिहा। अच्छा चलिए माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बात की, ठीक है। एक साहबी कह रहे हैं कि पढ़ो और एक साहबी कह रहे हैं कि ना पढ़ो, तो अब हमको वापस जाना पड़ेगा अल्लाह और अल्लाह के नबी की तरफ। अब ठीक है, अब सीधे अब जब इख्तिलाफ होगा तो कहाँ जाएंगे मेरे भाई? अल्लाह और अल्लाह के नबी के पास तो जाएंगे ना। हाँ, तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे आप सुनो। हजरत आप सुनो, एक हदीस नकल करते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ ये? कहाँ पे लिखा है भाई? कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है मेरे भाई? बुखारी में, मुस्लिम में, अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, नसाई में, इब्ने माजा में, मुवत्ता इमाम मालिक में, कहाँ पढ़ लो?
मुस्लिम शरीफ में। अच्छा मुस्लिम की पढ़ लो तो ठीक है, मुस्लिम की हम भी एक पढ़ेंगे, आप भी एक पढ़ो हम भी पढ़ेंगे, देखें कहाँ कहाँ भागते हो तुम। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पढ़ना, सहाबी मत पढ़ना फिर। हाँ मुस्लिम की मैं आपको हदीस ही पढ़ के बताऊंगा। हाँ हदीस ही पढ़ना। मुस्लिम शरीफ के अंदर है, हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस नकल करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खिताब फरमाया और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तलकीन फरमाई, नमाज का तरीका बतलाया और ये फरमाया कि नमाज पढ़ने से कबल अपनी सफ़ों को दुरुस्त करो, फिर तुम में से एक तुम्हारा इमाम बने, जब वो तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो, जब वो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन कहे तो तुम आमीन, जब वो तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो, जब वो किरात करे तो तुम खामोश रहो, जब वो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन कहे तो तुम आमीन कहो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 404, सफ़ा नंबर 174, 74। हाँ तो बिल्कुल सही हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे तो मेरा काम और आसान हो गया। तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मान लिया इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना चाहिए। क्या भाई माशाअल्लाह, आप तो मतलब बहुत समझदार निकले, मेरा काम और आसान कर दिया आपने। हाँ जी बोलिए। कि जब भाई इमाम साहब कुछ पढ़े किरात करें तो खामोश रहो, तो इसीलिए तो अबू दाऊद में जब भाई आई हुई ये हदीसें कि सत्ता देने की कि इमाम जब पढ़ता है, जब वो पढ़ के खामोश हो जाएगा तब हमको अपनी सूरह फातिहा पढ़ना है। अबू दाऊद की रिवायत ज़ईफ है। अरे मैंने कोई हदीस ही नहीं पढ़ी तो ज़ईफ आप क्या कर रहे हैं मेरे भाई, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आप पहले सुन तो लो। मैंने पेश की फजर। अरे इमाम अबू दाऊद का नाम ले लेने से क्या सारी किताब ज़ईफ उनकी हो जाएगी? पहले पूरी बात तो सुनो मेरे भाई, अल्लाह के बंदे। बोलिए बोलिए बोलिए। आपने कहा कि इमाम साहब जब कुछ पढ़े तो खामोश रहो, तो उस समय तो हम लोग भी खामोश है। तो तुम तकबीर कहो, मैंने कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी कह रहे हैं। हाँ अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हदीस सही है। हाँ बिल्कुल सही हदीस है। जब वो किरात करे, जब वो किरात शुरू करे तो तुम खामोश रहो। हाँ बिल्कुल खामोश हम लोग को रहना है। और जब वो गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम पढ़ जाए तो आमीन कहो। हाँ तो आमीन भी हम लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और खामोश भी रहते हैं। आमीन का मसला नहीं, अभी किरात का मसला है। हाँ वही हम बता रहे हैं, दोनों आपको एक ही हदीस में आ गई ना बात। आमीन भी हम लोग बोलते हैं, और जब इमाम साहब जब पढ़ते हैं किरत करते हैं तो हम लोग खामोश रहते हैं, और इमाम की किरत के बाद हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं सत्ता देना। तो सत्ता देने के बारे में मेरे भाई अबू दाऊद में हदीस आई है। अच्छा, और साहबी भी पढ़ते थे। आप सत्ते पे पढ़ते हैं? हाँ आप सत्ते पे किरत करते हैं? हाँ मेरे भाई, कितनी बार बोलूं, कान में तेल डाल लो मेरे भाई। सुनिए, मैं मेरे पूरे जमात के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ, आप पूरी जमात के ताल्लुक से बात कर रहे हैं ना? क्या? मैं अपनी पूरी जमात को अपने पीछे रखकर बात कर रहा हूँ, मुतकल्लिम बना हूँ। नहीं तो आपकी जो जमात है आपके पीछे, वो आपके पीछे आई नहीं ना, क्योंकि आप अलग बोलते हो, आपकी जमात अलग बोलती है। तो पूरे अहले हदीस सत्ते के साथ पढ़ते हैं। पढ़ना अफजल है, अगर कोई ना पढ़ता हो तो भाई वो हराम भी नहीं है। अगर कोई ना पढ़े, अब कोई इमाम है, देवबंदी इमाम है, बरेलवी इमाम है, वो सूरह फातिहा पढ़ने का टाइम ही नहीं देता है, तो अब तो हम उसके पीछे पढ़ेंगे ना। अगर वो टाइम देगा तो हम उस टाइम में पढ़ेंगे। आपको भाई सुनिए ना। अरे मुजाहिद भाई अब आप फंस चुके हैं, अपनी हदीस आप देके खुद ही फंस गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखिए जब कोई देवबंदी इमाम या कोई बरेलवी इमाम अगर सूरह फातिहा पढ़ता है और उसके बाद थोड़ी देर अगर पीछे वालों को पढ़ने का टाइम देता है तो हमको इसमें पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई टाइम ही नहीं दे रहा है, बिल्कुल रेल की तरह फटाफट पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात भाई हम तो पढ़ेंगे ना उसके पीछे, क्योंकि भाई उसकी नमाज नहीं होती। तो कह रहे हैं तो अल्लाह के अरे तो खामोशी का मानना आप क्या समझ रहे हो? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, खामोशी से आप क्या समझे? आप खामोशी का माना ही नहीं बता रहे हो। नबी ने साफ बता दिया, जब इमाम तकबीर कहे, हाँ तकबीर कहे, जैसे अल्लाह अकबर, हमने भी कहा अल्लाह अकबर। जब इमाम किरत शुरू, खामोशी का माना क्या है? खामोशी का माना क्या है? मुजाहिद भाई बता दो। हाँ खामोशी का माना क्या है? एकदम चुप रहना या बिल्कुल चुप रहना या कुछ नहीं पढ़ना? चुप रहना और कुछ ना पढ़ना ना। हाँ पक्का बता रहे हो जी। और सोचना है सोच लो, फिर मतलब भाई को भागने हम नहीं देंगे। एक मिनट सुनिए हजरत, सना का मसला नहीं है, सना में नहीं आप और मैं मुत्तफिक है, उस पे नहीं आएंगे, सना पे नहीं आएंगे भाई, हम सना पे नहीं आएंगे, हम सना पे नहीं आएंगे। हम खामोशी का माना आपसे पूछ रहे हैं, अब आप भागेगा नहीं। आपको भाई अब आप भागेंगे तो नहीं भाई, अब दिन तो आपका नहीं जागेगा ना, यहीं पर हो आपको, अब दिन तो आपका नहीं जागेगा ना।
एक मिनट सुनिए तो सही। अब दिन आपसे जागेगा कि नहीं बता दीजिए पहले, एक मिनट सुनिए ना, क्योंकि अब जो बात हम आपको ऐसी दलील देंगे ना कि आपका जिन जाग जाएगा, इसलिए मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ। एक मिनट सुनिए तो सही। एक मिनट सुनिए। नमाज पढ़ना हम दोनों मुत्तफिक है, फर्ज है, नमाजें हम पे 5 वक्त की। आप भी मुत्तफिक है, मैं भी मुत्तफिक हूँ। हाँ, इमाम एक बनता है और उसके पीछे मुक्तदी खड़े होते हैं, मैं भी मुत्तफिक हूँ, आप भी मुत्तफिक है। हाँ, मसला यहाँ पर है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना मुक्तदी है या नहीं। हम कहते नहीं पढ़ना, आप कहते फर्ज है, जो ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। मसला इख्तिलाफ यहाँ पर है। नहीं हम नहीं कहते, अल्लाह के नबी कहते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं कि जो भाई वो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। एक बार नहीं 3 बार कह रहे हैं। सही मुस्लिम किताबुल सलात हदीस नंबर 878। किताबुल सलात सही मुस्लिम, 1 मिनट रुकिए। हाँ बोल लीजिए भाई, हदीस नंबर 878। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से मारवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ऐसी नमाज पढ़े उसमें सूरह फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है, यानी कि पूरी नहीं। हाँ, तो इसमें शुबा क्या है हजरत? मैं बोल रहा हूँ हमारा जो इख्तिलाफ है मुख्तदियों के बारे में है। अरे मेरे भाई मुक्तदी इमाम की, देखिए अब आपको एक मैं छोटी सी प्यारी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है कि नहीं, इससे भाई उम्मत का इख्तिलाफ है, ठीक है। लेकिन अकेले सूरह फातिहा भाई आपको भी पढ़ना है, हमको भी पढ़ना है, ठीक। अकेले पूरे उम्मत के अंदर जब इनफरादी पढ़ता है ना कोई भी, तो उसमें सूरह फातिहा पढ़ता है, इस पे सबका इत्तेफाक है। वही मैं कह रहा हूँ, जब इंसान अकेले नमाज पढ़ता है तो सूरह फातिहा पढ़ता ही पड़ता है। अकेले भाई, अकेले इंसान जब नमाज पढ़ता है, हम दोनों भी मुत्तफिक है। हाँ है ना, है ना। अरे वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रिवायत ये पेश करे। अरे अल्लाह के बंदे, मुझे बोलने दोगे कि नहीं बोलने दोगे? खुद ही बोलते जाओगे। बोलिए भाई देखिए, आपने कहा कि आप भी नमाज पढ़ते हो, हम भी नमाज पढ़ते हैं। आप भी भाई वो 5 टाइम की मानते हो, हम भी 5 टाइम की मानते हैं। आप भी अकेले नमाज जब पढ़ते हो तो सूरह फातिहा पढ़ते हो, और हम भी अकेले नमाज पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा हो रहा है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है कि नहीं। तो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के बारे में तो इतनी सारी हदीसें आई हुई है। पहले तो लोग अकेले पढ़ते थे ना। अल्लाह के नबी ने सराहत की है, वहाँ पे किसी साहबी ने की है। हाँ, मुझे आप हमें कोई एक ऐसी हदीस दे दो जिसमें भाई अकेले साहबी पढ़ते हो और सूरह फातिहा ना पढ़ते हो, तो इंशाल्लाह मान लेंगे। आप कोई हमें ऐसी हदीस दे दो जिसमें सहाबा अकेले नमाज पढ़ते हो और उसमें सूरह फातिहा ना पढ़ते हो। ऐसी कोई हदीस है दुनिया में? अप्पू भाई, आप ऐसी कोई हदीस है दुनिया में? देखिए, अकेले पढ़ने के ऊपर आप भी मुत्तफिक है, मैं भी मुत्तफिक हूँ। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, इख्तिलाफ भाई अब जिसपे है उसी के ऊपर तो हदीसें आई हैं। उसी इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए तो अल्लाह के नबी ने बताया है कि यहाँ सूरह फातिहा पढ़ो, इमाम के पीछे पढ़ो, जो नहीं पढ़ता उसकी नमाज नाकिस है, नाकिस है, नाकिस है। तभी तो बताया जा रहा है। कहाँ पर है? अरे मेरे भाई बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में, नसाई में, इब्न हिब्बान में, इब्न खुज़ैमा में, अबू दाऊद में, कितनी हदीसें हैं। बुखारी की जो रिवायत है उसकी तशरीह जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरी हदीस की किताब। अरे तशरीह मेरे भाई आप अपनी अकल से ना कीजिए मेरे भाई, तशरीह आप नहीं समझ पाए जाके। भाई सहाबा क्या कह रहे हैं आप नहीं समझ पाओ, जल्द समझ के हिसाब से कह रहा हूँ। सहाबी बताइए, एक सहाबी बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में सहाबी ने इमाम के पीछे किरात करने के लिए हुक्म दिया है। एक सहाबी बताइए। सारे सहाबी मेरे भाई, सारे, एक ने भी नहीं। एक बताइए, सारे नहीं, एक बताइए मेरे भाई। हजरत अबू बकर हो, हजरत उमर हो, हजरत उस्मान हो, हजरत अली हो, मतलब जितने मतलब अधिकतर सारे साहबा, जहाँ तक आप नाम देते जाएंगे सब इमाम के पीछे पढ़ते थे सूरह फातिहा। किताब का नाम लीजिए कि इधर अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम के पीछे वो भी सूरह फातिहा पढ़ते हैं और लोगों को फतवा देते हैं कि तुम भी सूरह फातिहा पढ़ो, लेकिन आहिस्ता पढ़ो। सही मुस्लिम किताबुल सलात हदीस नंबर 878। अब बताइए। अच्छा, हाँ जी जी जी। अब आप सुने ना बात? नहीं, अब जो मैंने आपको बताया है उसको आप मानते हैं?
बिल्कुल सुकून से बात कर रहे हैं मेरे। अरे आप कोई चीज पूछते हो, जब मैं बताता हूँ तो ये तो बताया करो जो अप्पू भाई आपने बताया है मैं इसको मानता हूँ कि नहीं मानता हूँ, तो ये तो बताओ ना। जी हजरत, मैं वही बता रहा हूँ। आप मानते हैं ना इसको कि नहीं मानते हैं? मुस्लिम शरीफ की ये हदीस है, मुस्लिम शरीफ। हाँ मेरे भाई हवाला दे दिया मैंने। हाँ जी, मुस्लिम शरीफ के अंदर इमाम नज़वी रहमहुल्लाह, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह का कायदा बयान कर रहे हैं। फिर आप भागे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो मैंने आपको इसको बताया। नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, जब तक आप टॉपिक से भागेंगे नहीं सुनूंगा। मुबारक लेकर आते नहीं सुनूंगा, नहीं सुनूंगा, आपकी मनमानी बातें नहीं सुनूंगा। आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ वो आप बताते नहीं हो, आप फटाक से इधर पूछ जाते हो उधर पूछ जाते हो। बात कर रहा हूँ क्या? तो मैं भी आपसे मेरे भाई साहबी की बात कर रहा हूँ। आप साहबा को छोड़ के, आप मेरे भाई साहबी को छोड़ के इमाम के ऊपर क्यों जा रहे हैं? अच्छा, अगर मैं इमाम भाई, हाँ इनको मानते हैं कि नहीं आप? फरमाते हैं इमाम इसलिए बना जाता है कि उसकी इक्तिदा की जाए। जिस वक्त इमाम कुरान पढ़े तो तुम खामोश रहो, इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन कहे तो तुम आमीन कहो। इब्न माजा के अंदर भी है, इमाम नसई ने बाप बाला किरात सर के किरात खल्फल इमाम। अरे जो सही मुस्लिम में बात आ रही है उसको छोड़ के आप इब्ने माजा पे भाग रहे हो यार। आपको ये क्या प्रॉब्लम है? जिस टॉपिक पे जिस किताब पे बात होती है उस पर आप बात ही नहीं करते हो। एक मिनट सुनिए ना हजरत, अगर मैं जब हम कुरान पे बात करते हैं तो आप हदीस पे भाग जाते हो, जब हम हदीस पे बात करते हो तो आप इमाम पे भाग जाते हो, जब मैं इमाम पे बात करता हूँ तो वापस आप सहाबा पे भाग जाते हो। मुझे बारे में कहा जा रहा है, मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो वही बता रहे हैं ना जो मेरे भाई सही मुस्लिम में आया है, इस चीज को आप मानते हो कि नहीं? इतना बता दो हाँ या ना। हाँ तो मेरे भाई इस चीज को आप मानते हो कि नहीं? से मुराद क्या है? अरे अपने दिल में पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो, इसको आप मानते हो कि नहीं? आहिस्ता पढ़ो, आहिस्ता पढ़ो, किसने तर्जुमा किया इसका? अरे अपने दिल में पढ़ो। अब ठीक है, इसको मानते हो? दिल में पढ़ो, दिल में पढ़ने से मुराद क्या है भाई? सरफराज सदर जो भाई वो देवबंदी हैं वो कहते हैं कि दिल में पढ़ने से मुराद ये है कि इतनी खामोशी से पढ़े कि दूसरों तक आवाज ना जाए। अभी आप क्या आलिम कह रहे हैं? अब जाके उनसे सरफराज खान सदर देवबंदी। हाँ जी, मौलाना सरफराज साहब, कौन सी किताब? अरे किताब देखना पड़ेगा मेरे भाई। मैं फिर भी मेरा जो उसूल है वो कुरान और हदीस है। मुझे इसके हवाले याद है, मेरे को आपके आलिमों के कॉल के हवाले नहीं याद है, ये मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी मैंने आपसे पूछा था, नहीं अभी मैंने आपसे पूछा था खामोशी का माना क्या है, तो आप नहीं बता पाए थे। आप बताइए ना खामोशी का माना क्या है? खामोशी का माना मत पढ़ो। खामोशी का माना मत पढ़ो ना। तो आपके वहाँ जब इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं और अल्लाह अकबर कहने के बाद वो खामोश हो जाते हैं और सीधी सूरह फातिहा से स्टार्ट करते हैं, तो उस समय काहे पढ़ते हैं? क्योंकि माना तो है मत पढ़ो ना। क्या आपके इमाम साहब जब नमाज पढ़ाते हैं मस्जिद में, अल्लाह अकबर कहते हैं, उसके बाद खामोश हो जाते हैं, उसके बाद सूरह फातिहा से स्टार्ट करते हैं। तो बीच में जो भाई वो सना पढ़ते हैं, औज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो वो भी तो पढ़ते हैं ना खामोशी में। और आप तो कह रहे हो खामोशी का माना है कुछ मत पढ़ो। हम दोनों का आप खुद ही अपने इमाम, फिर वही चीज खामोशी का माना इसका मतलब आपका बातिल हो गया, आपने झूठ बोला। आप तो अपनी पूरी देवबंद को साथ में लेके चल रहे थे, यानी कि आपने पूरे देवबंद के पिछवाड़े पे लात मार दी। आपने अपने सारे देवबंदियों के जो इमाम बने हुए हैं उनके पिछवाड़े पे लात मार दी आपने। 6 किताबों के नाम लिया। अरे आप 6 के नाम लो या 600 के नाम लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है दीन इस्लाम में। आपने खुद कहा कि खामोशी का माना ये है कि कुछ नहीं पढ़ना, तो आपके इमाम साहब क्यों पढ़ते हैं खामोशी में? भाई वो सना पढ़ते हैं, औज़ुबिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो ये खामोशी में तो पढ़ते हैं ना। एक मिनट, अब बात का खुलासा ये है कि खुलासा ये है कि आपने खामोशी का मानना गलत बताया और आप अब अटक गए हैं, फंस गए हैं, अब आप फोन काट के भागने वाले हैं। आपने अपने देवबंदी इमाम के पिछवाड़ों पे लात मार दी। एक मिनट सुनिए अप्पू भाई, देखिए आपने जो बोला ना, मैंने जब आपको मुस्लिम शरीफ की रिवायत पेश, आपने खामोशी का माना अपने मन से क्यों किया? आपने खामोशी का माना अपने मन से क्यों किया? आप होते कौन है खामोशी का माना अपने मन से करने वाले? खामोशी का माना क्या है? खामोशी का माना ये होता है कि भाई अगर कोई इंसान खामोश है, अगर वो कुछ अपने में ही बोल रहा है, अपने में ही पढ़ रहा है, दूसरों तक आवाज ना जाए, तो इसको भी खामोशी कहते हैं।
और ये मेरे भाई ये हदीस से साबित है। फिर से बोलिए। अगर कोई इंसान खामोश है, अगर वो अपने दिल में कुछ बोल रहा है, अपने दिमाग में कुछ सोच रहा है या अपनी जबान से एकदम हल्की हल्की हरकत दे रहा है कि किसी के कानों तक आवाज ना आए, तो वो भी खामोशी के ही माने में है। और ये आपके इमामों से साबित है, क्योंकि आपके इमाम लोग जब अल्लाह अकबर कहने के बाद खामोश होते हैं तो सना भी पढ़ते हैं, औज़ुबिल्लाह भी पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, तो वो भी कुछ पढ़ते हैं ना। इमाम मुस्लिम पे अब हम आपसे बातें नहीं करेंगे, हम आपसे खामोशी के माने पे बात करेंगे। आप पहले इनकार कीजिए, आप पहले इनकार कीजिए जो आपने खामोशी का माना बताया है वो आपने उम्मत को धोखा दिया है। आपकी अकल जो है नाकिस है, अकल नाकिस है। अभी आपने कहा कि खामोशी का माना होता है कुछ नहीं पढ़ना, तो आपके इमाम साहब क्यों पढ़ते हैं? आपके इमाम क्यों पढ़ते हैं? वो सना भी पढ़ते हैं, औज़ुबिल्लाह भी पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह भी पढ़ते हैं, तो खामोशी में वो क्यों पढ़ते हैं? आपके इमाम सना नहीं पढ़ते, तो हमारे तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास खामोशी का माना ये है कि भाई हम लोग पढ़ सकते हैं। भाई आपने जो माना बताया है, आप अपनी जमात के ठेकेदार बने हुए हो, आपने अपनी जमात की नैया डुबो दी, आपने अपनी जमात की नैया डुबो दी। अरे मुजाहिद भाई वाकई में बहुत बड़े टाइम पास हो यार तुम। इतनी देर से मेरा दिमाग खा गया, वाकई में देख लिया। भागो 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 मेरे भाई, भागो 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 भागो। भाई खामोशी का माना नहीं पता है, खामोशी का माना नहीं पता है आपको। आप पहले खामोशी का माना अपने आलिमों से पूछ चाहिए, उसके बाद कॉल कीजिएगा, ठीक है? अब भाई खामोशी का माना आपने जो बताया है ऑडियो में रिकॉर्ड हो गया है। आपने कहा है कि खामोशी का माना ये कुछ मत पढ़ो। आपने कुरान तो एक तरफ आप कह रहे हो खामोशी का माना कुछ मत पढ़ो, तो जब कुछ नहीं पढ़ो तो भाई सना काहे पढ़ी जा रही है, औज़ुबिल्लाह क्यों पढ़ी जा रही है, बिस्मिल्लाह क्यों पढ़ी जा रही है? सिर्फ झूठ बोलते हो, सिर्फ मुगालते देते हो, कौड़ी का इल्म नहीं करोड़ों की बात करते हो। मुजाहिद देवबंदी आपकी बहुत जोरदार पिटाई हो चुकी है, अब आप आराम से जाइए, चने बादाम खा के आराम कीजिए। आप जाके चने खा के आराम कीजिए। ऑडियो जब जाएगी ना, ऑडियो जब जाएगी लोग जान जाएंगे। ऑडियो जब जाएगी मेरे भाई दुनिया जान जाएगी कि आपको कितनी अकल है। इधर से उधर आप खाली बात करें, कुरान पे बात करो तो हदीस पे भागेंगे, हदीस पे बात करो तो सहाबा पे भागेंगे, सहाबा पे बात करो तो इमाम पे भागेंगे, इमाम पे बात करो तो मतन पे भागेंगे, मतन पे बात करो तो सनद पे भागेंगे। सिर्फ आप 1 घंटे से भाग रहे हो। एक भी आयत आपके पास नहीं है कि कुरान में साफ साफ आया हो कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ो। कुरान पेश करो, आप कुरान पेश करो ना कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़ो। मैंने तो पढ़ लिया। क्या पढ़ा आपने? क्या पढ़ा पढ़ो ना। हाँ तो ये मक्का में नाजिल हुई थी ना। अरे ये मक्की आयत है कि नहीं? हाँ अरे ये मक्की आयत है कि नहीं? हाँ तो इसमें क्या हुआ? तो बात करना चाह रहा मैं खुद ही बातिल आपका सीधा हो गया। कैसे क्या? अरे मेरे भाई मक्की आयत को आप कहाँ फिट कर रहे हो? आप खुद सोचना, पानी पी के, ठंडा पानी पी के। तो आपका एतराज क्या है? ये एतराज ये है नमाज जो मेरे भाई फर्ज हुई है वो मक्का में नहीं हुई है, मदीना में हुई है। अच्छा, अगर मैं दिखा दूं मक्का शरीफ के अंदर जमात से नमाज होती थी, वो पढ़ते थे के अंदर से। हाँ मेरे भाई दिखाओ। हाँ दिखाओ। मुस्लिम शरीफ के अंदर है। हाँ दिखाओ, हदीस नंबर बताओ, बाप का नाम बताओ, दिखाओ। अल्लाह के नबी। अच्छा 1 मिनट सुनिए। काबे 1 मिनट। ताइफ के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से गए थे? कहाँ गए थे? ताइफ का जो वाकया पेश आया है वो अल्लाह के नबी ताइफ के लिए कहाँ से गए थे? जरा मुझे वो सब बात की बात है मेरे भाई, आप जो हदीस पढ़ लो वो बताओ। नहीं इसे भागने के रास्ते मत ढूंढो मेरे भाई। ताइफ से लौटे अल्लाह के नबी जमात करा रहे थे और जिन्होंने नमाज फर्ज कहाँ हुई? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मक्का में हुई या मदीना में हुई? नमाज फर्ज कहाँ हुई? मक्का में हुई? नहीं, फर्ज नमाज की बात नहीं ना, जमात कहाँ हुई है? इमाम। अरे फर्ज कहाँ हुई है? इमाम के पीछे फर्ज कहाँ हुई है? 1 मिनट। तो ना फर्ज पे जाए भाई, जब नमाज फर्ज होगी तभी तो सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज होगा। अजीब मेंटल आदमी हो आप। अच्छा तो आप दिखाएंगे मुझे कि अल्लाह के नबी फर्ज होने से पहले जब नमाजें पढ़ते थे उसमें सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे? अरे पहले के साहबा मेरे भाई अकेले भी पढ़ते थे, साथ में भी पढ़ते थे, वो बात का मसला है। नमाज फर्ज होने के बाद जो उम्मत को कैसे पढ़ना है बात इसमें होनी है ना।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात कराई है, सहाबा ने पीछे नमाज पढ़ा है, जिन्होंने जिन्नात ने आयतें सुनी कुरान की और इस्लाम कबूल किया। मुस्लिम शरीफ के अंदर है ये रिवायत। अरे मेरे भाई घोड़े की बात हो रही है, तुम गधे की बात पेश कर रहे हो। अजीब पागल आदमी हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि नमाज फर्ज कहाँ हुई, मक्का में या मदीना में? अरे तो इससे मतलब क्या है? मैं आप इनकार कर दो, आपको नहीं मालूम है। आपका एतराज जो है ना वो खुल कर नहीं आ रहा है। वो खुल के आ जाएगा मेरे भाई, जब खुल के आएगा तो आप खुल जाओ, आपका दिमाग खुल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। और मुजाहिद भाई खैरियत? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, तो आपने जो पेश की थी दलील वो ये थी कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और कान को लगाकर सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरह आराफ आयत नंबर 204। तो मेरा सवाल ये है कि आपने इसको भाई वो बीच में से काहे के लिए उठा लिया? अगली ही जो आयत है वो 205 है जो 204 के मातियत है। तो दोनों का साथ में अगर आप लेके पढ़ेंगे तभी तो आप मेरे भाई समझेंगे। अप्पू भाई मैं देखो ना आपकी बात मानूंगा ना किसी उम्मती की बात मानूंगा। आप मुझे सहाबी से पेश करें कि ये 205 भी उसके जिम्मन में है, जैसे मैंने 2 सहाबा पेश किया, इस तरह सहाबी भी पेश करता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये आयत नमाज के बारे में नाजिल हुई है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 447। अरे तो ये भी तो उम्मती की बात हो गई ना, इसमें अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात कहाँ है? हाँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे और मेरे तो सहाबा से है ना, किताब तो इसके बारे में। अरे आवाज साफ नहीं आ रही भाई, ठीक से बोलिए। आवाज कैसे नहीं आ रही हजरत? मुझे तो हाँ अब आ रही, बोलिए। जो है ना सुफियान बिन उयैना बुखारी शरीफ के जो मरकजी रावी है। नहीं, बुखारी की जो हदीस है कि ला सलाता लिमन यकरा बे फातिहल किताब, तो इसमें जो ला सलाता है यानी कि उसकी नमाज नहीं, तो किसकी नमाज नहीं? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ ये अकेले नमाजी के लिए उसके मरकजी रावी। अरे अकेले है या 20 लोग के साथ में, वो बाद में सवाल आएगा। हम पूछ रहे हैं उसकी नमाज नहीं तो किसकी नमाज नहीं? आप क्या समझे इस हदीस से? वो ताबई है, ताबई जिन्होंने सहाबा की। अरे ताबई उस पे बाद में आएंगे। मैं आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूँ अल्लाह के बच्चे कि ला सलाता उसकी नमाज नहीं, किसकी नमाज नहीं? इमाम के पीछे पढ़ने वालों की या सबकी, या जो अकेले पढ़ने या साथ में पढ़ने, किसकी नमाज नहीं हुई? हाँ हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखो अल्लाह के नबी की बात को सहाबा ने बेहतर समझा, ये मैंने आपने नहीं तो दूसरी हदीस पे जाएंगे तो हम भी दूसरी हदीस आपको पेश करेंगे, वो भी सहाबी की होगी वही, और वो भी एकदम भाई वो सही होगी। तो एक हदीस पे बात रिवायत के ताल्लुक से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कह रहे हैं कि कोई नमाज, कोई एक मिनट सुनिए तो सही, कोई रकात फातिहा के बगैर नहीं। एक मिनट, तिरमिज़ी में है हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कोई रकात फातिहा के बगैर नहीं होगी। आगे फरमाया इल्ला यकूना वरा अल इमाम, कि वो जब इमाम के पीछे हो तो ना पढ़े। यही रिवायत के बारे में क्या ना पढ़े? फातिहा ना पढ़े, किरात न करे। अल्फाज ये है कि सूरह फातिहा ना पढ़े। अल्फाज ये है जो आप बता रहे हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़े, ज्यादा अल्फाज है इसमें। क्यों झूठ बोल रहे हो मेरे भाई? काहे झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। किरात का लफ्ज आया, किरात। मेरे भाई तिरमिज़ी में, अबू दाऊद में, नसाई में कितनी सारी भाई वो हदीसें हैं कि हजरत उबादा बिन सामित ठीक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई और आप पर किरात भारी। उससे पहले ये बुखारी का हो जाने दो ना एकदम कंप्लीट। तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक मेरे भाई आयत पे बात कीजिए, एक हदीस पे बात कीजिए, वरना अगर आप दूसरी हदीस पे जाएंगे तो हम भी दूसरी हदीस पे जाएंगे। वो हदीस की तशरीह बयान कर रहा हूँ। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब की जो तशरीह सहाबा ने बयान की है, मैं सहाबी की बात मानूं या वहाबी की बात मानूं? मैं तो भाई आप अल्लाह के नबी की बात मानिए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं ला सलाता लिमन यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब। एक मिनट सुनिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया
یہ روایت جو ہے نا یہ مکمل نہیں ہے. اس کی دوسری ابو داؤد کے اندر دیکھیے یہی روایت ہے اور آگے بھی اس کے جملے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا. اس کی نماز نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا, آپ نے میرا کام آسان کر دیا. آپ سن لیجیے, اب آپ کے معاملہ سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, الحمدللہ آپ نے کام بہت آسان کر دیا میرا. لوگوں کو یہ کام کرنے کے لیے بڑی محنت ہم کو لگتی ہے, لیکن آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہے, اقرار آپ نے کر دیا. بھائی دیکھیے, آپ بھی مانتے ہیں. ہاں سن لیجیے میرے بھائی, آپ بھی بتاتے ہیں فصاعدا کا لفظ بھی ہے کہ جی دیجیے. پہلے حدیث کیا بتاتے ہیں کیا نہیں بتاتے ہیں وہ میرے بھائی آپ نہ جانیے. ٹھیک ہے, آپ سنیے, اس کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے, خالی اتنی حدیث لائے. ٹھیک ہے, امام بخاری رحمہ اللہ, امام بخاری اتنی حدیث لائے. ارے سن لیجیے میرے بندے, پھر آپ آرام سے بول لیجیے گا. جی کیا بول رہے تھے آپ؟ اتنی امام بخاری رحمہ اللہ جو کتاب الاذان میں جو حدیث لائے ہیں, امام بخاری کا میں آپ کو اصول بتاتا ہوں. امام بخاری کہتے ہیں, ارے اصول میرے بھائی مسلم کا اصول بھی پتا ہے, بخاری کا بھی پتا ہے میرے بھائی. مقدمہ پڑھ دن نمبر 2 امام بخاری. ارے آپ میرے بھائی اصول نہ بتائیے میرے بھائی, آپ کو اپنے اصول نہیں معلوم ہے, آپ بخاری کے اصول بتا رہے ہیں. بھائی پھر ایسے بات نہیں ہو پائے گی مجاہد بھائی, جب آپ بولنے نہیں دے تو. اچھا ایک منٹ ٹائمنگ لگا لیتے ہیں. 5:05 ہو رہے, آپ کو 3 منٹ کا موقع. 3 نہیں 1 منٹ میرے بھائی, صرف 1 منٹ بہت ہے. نہیں 3 منٹ بول لو تاکہ نہیں 3 نہیں میرے بھائی, 1 ہی منٹ میں الحمدللہ جس کے پاس میرے بھائی وہ حق ہوتا ہے نا, وہ تھوڑے سے ٹائم میں ہی ساری باتیں بول جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہمیں لیکچر دینے کی نہیں ہے. تو معلوم پڑ گیا, حدیثوں پر آ گئے. نہیں میرے بھائی, کچھ ایک ہی بتائیے, پہلے قرآن ہے کیا آپ؟ جی آپ کون ہیں؟ پہلے قرآن ہے تو ہاں, تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو, لیکن کیسے قائم کرو, اس کے لیے ہم کو اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر جانا پڑے گا نا. تو اگر میں آپ کو حدیث پیش کر رہا ہوں, آیت دکھائیے جس کے اندر ہو کہ بھائی فاتحہ کو قائم کرو, قرات کو قائم کرو, ایک آیت تو دکھائیے. میرے بھائی ہم سب دکھائیں گے نا. پہلے آپ تو کوئی قرآن کی آیت پیش کیجیے جس میں صاف صاف آیا ہو کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھو. آپ تو وہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو, اس سے آپ قیاس کر رہے ہو. 1 منٹ, میں آیت پڑھتا ہوں, اس کے تشریح کے اندر حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, نہیں آیت آپ پڑھیں گے, اس کے اوپر میرا سوال ہوگا, اس کے اوپر آپ آنسر دیجیے گا. ہاں تشریح تو میرے پاس بھی ہے, تشریح تفسیر تو میرے پاس بھی بہت بھی ہے. 1 منٹ سننے تو صحیح. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ٹھیک ہے, یہ آیت میں نے پڑھی ہے. اب آپ کو اس پہ کیا سوال ہے ذرا بتائیے. اس پہ سوال یہ ہے کہ آپ نے اس کے آگے کی آیت کو کاہے کے لیے نہیں پڑھا؟ کس لیے پڑھنا ہے مجھے ذرا بتائیے آپ. بارے ابھی قرآن سے کوئی آدمی کہہ دے کہ نماز مت پڑھو, نماز کے قریب مت جاؤ, اور آدھے ہی پڑھ کے اس کو چھوڑ دے, تو اگلا آدمی تو نماز چھوڑنے لگ جائے گا. اس کو پوری بات بتائیں گے نا کہ نشے کی حالت میں نہ نماز پڑھو, آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں پڑھنا ہے. ایک منٹ, آپ کو بات غلط بات ہے یہ. میں نے بھائی غلط بات آپ بول رہے ہیں میرے بھائی. کے اندر 2 صحابہ پیش کیے. ارے میرے بھائی تشریح پہ بعد میں آئیں گے. اب میرے بھائی صحابی کی سند کے ساتھ آپ کو ہم پوری بھائی وہ متن بھی بتائیں گے, حدیث بھی بتائیں گے, سب بتائیں گے. پہلے جو آپ نے آیت پیش کی اس کے اوپر میرے اعتراضات کا تو آنسر آپ دیجیے. ابو بھائی سنیے نا, دیکھیے میں نے آیت مبارکہ پڑھی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتدیوں سے فرمایا کہ شاید کہ تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو. مقتدیوں نے کہا ہاں, کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو, تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے. جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تفسیر ابن ابی حاتم میں نے حوالے بھی دیے. حضرت تو اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھو؟ 1 منٹ سنیے تو صحیح. صحابی کیا کہہ رہے ہیں, آپ اس سے ماننا کیا لے رہے ہو کسان کے؟ عجیب بات ہے میرے بھائی. 1 منٹ, حضرت عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہو. ہاں, تو قرات فاتحہ نہیں ہوتی. قرات فاتحہ نہیں ہوتی, قرات فاتحہ نہیں ہوتی. میں سوال کر رہا ہوں, جواب نہیں دے رہا ہوں. قرات فاتحہ نہیں ہوتی, ہوتی یا نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی بھی ہے. ہاں ہوتی ہے, تو اس سے کیا مطلب آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود یہی ثنا بھی تو قرات ہے میرے بھائی. آپ کے مسلک کے حساب سے تو جو یہ ثنا یہ بھی قرات ہے.
आप इसको भी पढ़ना छोड़ दो, अल्लाह अकबर कहे तो ये भी पढ़ना छोड़ दो, अत्तहियात पढ़ तो ये भी पढ़ना छोड़ दो। अगर खामोशी, तो वही तो बता रहे ना, हम सब पे आएंगे, एक नहीं मेरे भाई दसियों बता देंगे। एक कॉल दिखाइए, एक कॉल दिखा, एक नहीं 10 बता देंगे, आपको 10 बता देंगे मेरे भाई। आप इतना परेशान न हो, ये आप अफ्फू खान से बात कर रहे हैं अलहमदुल्ला, किसी अफ्फू का बच्चे से बात नहीं कर रहे हैं। नंबर 1, हाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 420 तक आपको बता देंगे। आप पहले ये बताइए जो आपने आयत पेश की है। नंबर 1, हाँ, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको कान को लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहे। तुमने कहा ना अभी इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक जो सना है ये भी किरात में शामिल है। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? तैनात की बुक में। कौन सी बुक में? अरे उसका स्कैन में दे दूंगा मेरे भाई, रखा हो मेरे पास, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? नाम बोलिए भाई, नाम मेरे समय भाई को माइंड में नहीं है, तो आप नाम देखिए। नाम मेरे दिमाग में इस समय नहीं है मेरे भाई, उसको हम दे देंगे ना, उसको हम आपको दे देंगे, वादा रहा मेरा, ठीक है? कंप्यूटर में है, लैपटॉप कंप्यूटर में नहीं है, मस्जिद में मेरे भाई। अरे भाई मेरे भाई, आप तो एक ही चीज के पीछे ऐसा मतलब पड़ गए हैं बच्चों की तरह से। ऐसे तो हम भी आपके पीछे पड़ जाए, ऐसे तो हम भी आपके पीछे पड़ जाए कि अभी भेजो, तुरंत भेजो, फौरन भेजो, तो ये कोई बात करने के आजाद नहीं होते मेरे भाई। ठीक है, आप हाँ, ये कर दें, इंशाल्लाह हम देंगे, हम इंशाल्लाह आपको देंगे, ठीक है? हनफी के इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक जो सना है वो भी भाई किरात में आता है, ठीक है? ये चीज की, हाँ, इस चीज की दलील आपको हम देंगे, ठीक? अच्छा, आप सुनिए, आप मेरे भाई, आपने जो ये कुरान की आयत पेश की है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसे कान लगाकर सुनो और चुप। 1 मिनट, इधर रुकिए, मोहल्ला आए हुए हैं हमारे, मेरी थोड़ी बात है भाई। 1 मिनट, हमारे हजरत आए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, आप बात कर लीजिए। हाँ, हम होल्ड पे हैं, हम होल्ड पे हैं। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिनल लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल उक़दतम मिनल लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बिश रहली सदरी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ जी, 1 मिनट जी, बात सुन लीजिए आप। आपने कहा कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह के नजदीक सना भी किरात है, ठीक है ना? हाँ, इसका स्कैन में आपको दूंगा, मेरे ऊपर ये आपका उधार है, इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा। बात सुनिए, किरात से मुराद क्या देंगे आप? क्या? पढ़ना या कुरान? किरात से मुराद कुरान है या पढ़ने के बारे में? क्योंकि पढ़ने को भी किराती कहा जाता है। हाँ, तो उसी मुराद में चाहिए, कुरान की किरात चाहिए। नहीं मेरे भाई, सना कहा कुरान में मेरे भाई। अच्छा, तो आप ये बताएंगे कि कुरान नहीं है सना, तो उसको भी किरात बोलते तो गलत क्या है उसमें? तो ये तो आपके इमाम साहब को मतलब भाई ये समझना चाहिए था ना, उन्होंने सना को भी किरात में क्यों शामिल किया? अजीब बात कर, आपने कहा कि किरात करने से मना किया, ठीक है? तो किरात तो मेरे भाई उसकी भी हो गई ना, सना की भी हो गई, अत्तहियात की भी हो गई, तो आप सब कुछ पढ़ना छोड़ो। सुनिए अप्पू भाई, सूरे फातिहा से इतनी दुश्मनी क्यों? अप्पू भाई सूरे फातिहा से इतनी दुश्मनी क्यों? मैं वही दिखा रहा हूँ आपको, दुश्मनी की। आपके पास कोई भी ना तो एक कुरान की साफ तौर पे आयत है कि इमाम के पीछे सूरे फातिहा ना पढ़ो, ना ही कोई अल्लाह के नबी के कोई एक सही सनद से हदीस साबित है जिसमें इमाम के पीछे सूरे फातिहा ना पढ़ो, ना ही किसी सहाबी का फतवा है कि अल्लाह के नबी के पीछे या इमाम के पीछे सूरे फातिहा ना पढ़ो। तो आपके पास कुछ है नहीं, आप खाली इधर उधर से दलील की टांग पैर मतलब वो खींच खाच के अपने ऊपर फिट कर रहे हो, ठीक है? तो आपने जो पहली दलील हमको दी है, मैं बोलूँगा आप खामोश रहेंगे इंशाल्लाह। तो वही तो मैं आपसे मर्जी है बोल लेना, जब तक आप बोलेंगे मैं खामोश रहूंगा। मेरा भी अरे मेरे भाई, मेरे को बयान नहीं करना है, मेरे को आपने जो हमको भाई ये एक दलील पेश की है इमाम के पीछे सूरे फातिहा ना पढ़ने की, उसके ऊपर थोड़े मेरे सवाल है भाई, उसका आप हमको आंसर दे दो, उसके बाद जो मैं आपको दूंगा मेरे भाई, वो अपनी हदीस, आपको जो सवाल करना है आप कर लेना। तो आपने जो ये आयत पेश की है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको कान को लगाकर सुनो और चुप रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो मेरा सवाल ये है कि इमाम साहब
भाई वो जोहर में और असर की नमाज में, तो वो तो भाई एकदम वो साइलेंट, तो जब वो साइलेंट भाई वो रहते हैं तो उस समय कान को लगा के हम क्या सुनेंगे, उस समय क्यों नहीं पढ़ेंगे। एक सवाल तो हो गया ये। अच्छा, आप एक सवाल पूछे, मैं उसका जवाब देता हूँ, फिर आप दूसरा सवाल पूछिए, ठीक है? हाँ ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप। अभी आपने कहा कि सिर्री नमाजों के अंदर इमाम पढ़ता ही नहीं है, तो क्या कान लगाकर गौर से सुनेंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जो बयान किया है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुक्तदियों से फरमाया कि शायद कि तुम इमाम के पीछे किरात करते हो। मुक्तदियों ने कहा हाँ, तो इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, क्या तुम समझ नहीं रखते हो, तुम्हें क्या हो गया कि तुम अकल से काम नहीं लेते? जब कुरान पढ़ा जाए तो पढ़ना कहाँ पर आता है, सिर्री में या जहरी में? कहाँ आता है आप बताइए, बोलिए ना आप बता देना मेरे भाई, दलील आप दे रहे हो, आप बताओगे ना, फिर उसके बाद हम आपकी मुंडी पकड़ते हैं ना। आप बोलिए तो आगे। जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम कान लगाकर गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हाँ हाँ, ये तो आयत के अंदर सहाबी है। अच्छा, ये आयत की तशरीह अल्लाह के नबी ने खुद की है। अल्लाह के नबी जब भाई वो फजर की नमाज पढ़ रहे होते हैं तो आपके ऊपर सीरत करना भारी हो जाता है, तो अल्लाह के नबी साहबी से पूछते हैं क्या तुम मेरे पीछे कुछ पढ़ते हो, तो साहबी कहते हैं कि हाँ जो कुछ आप पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि कुछ मत पढ़ा करो सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि उसकी नमाज नहीं होती। हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपने पढ़ी है, तहकीक आपकी मुकम्मल है? तहकीक अरे मेरे भाई पूरी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। हवा में बात करना मेरे भाई मुकल्लिद की आदत होती है। कौन सी किताब में हजरत ये अभी? अरे बहुत सारी किताबों में। एक किताब का नाम लो ना हजरत। भाई तिरमिजी में है किताबुल सलात हदीस नंबर 311 में, अबू दाऊद में है हदीस नंबर 823, नसाई में है हदीस नंबर 921। चलो एक किताब, और जो ये हदीस है ये बिल्कुल सही है और इसकी सेहत पे कोई भी शुबा नहीं है। अच्छा, इसकी सेहत पे कोई भी शुबा नहीं है? हाँ, क्योंकि इसको खुद मेरे भाई इमाम तिरमिजी और इमाम दारकुतनी ने इसको हसन कहा है और बैकी ने सही कहा है। एक मिनट सुनिए, अबू दाऊद में आपने पढ़ा हदीस नंबर 823, ये हदीस है ना अबू दाऊद शरीफ के अंदर? हेलो, हाँ बोलते जाओ जी। ये हदीस अबू दाऊद के अंदर हदीस नंबर 823 है। किसकी सनद जरा पढ़ेंगे आप? सनद पढ़िए ना, अबू दाऊद के अंदर जो रिवायत है। भाई मैं आपसे रास्ते में बात कर रहा हूँ, जो मुझे याद है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। आपने अभी तक आपने कौन सी सनद हमको पेश की? नहीं, सनद आपको बता भी देंगे तो आप क्या कर लोगे, पहले ये बताओ। आप तो मुकल्लिद हो ना? नहीं, आप तो मुकल्लिद हो ना? के अंदर जो सनद है उस सनद के अंदर मकबूल रहमहुल्लाह है। कौन है? मकबूल रहमहुल्लाह। मकबूल? मकबूल, अच्छा मकबूल, MAKHOOL, मकबूल। हाँ हाँ। उनके ऊपर जरा है कि वो अन से रिवायत कर रहे हैं और मुदल्लिस है। अच्छा हाँ, और तबकातुल मुदल्लिसिन मैं 6 किताबों के हवाले देता हूँ, इनके अंदर भाई आप जिस रावी का नाम बता रहे हैं ना उसके रावी का नाम आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, ठीक से पढ़िए जरा। क्या आपने मतलब भाई वो जिस रावी का नाम पेश किया है क्या वो रावी उसमें है, वाकई में है? जी बिल्कुल वाकई है। पढ़िए जरा सनद भाई। जी जी पढ़ता हूँ मैं, रुकिए पढ़िए। हाँ रुके भाई। जी जी। अबू दाऊद की सनद चाहिए आपको? नहीं, जो आप बता रहे हैं कि रावी है और ये अन से करता है, मुदल्लिस है। हाँ जी जी जी। अबू दाऊद। हाँ, तो वो रावी कहाँ पे आया है जो आपने पेश किए है? सुनिए उसकी सनद बता रहा हूँ मैं। बताइए। अबू दाऊद, ठीक है, इमाम अबू दाऊद, उन्होंने अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अन-नुफैली रहमहुल्लाह से, उन्होंने मोहम्मद बिन इसहाक। मोहम्मद बिन इसहाक नहीं, मोहम्मद बिन इसहाक नहीं है। आप हाँ मेरे भाई कौन सी हदीस पढ़ना है? एक मिनट सुनिए तो सही, मेरी बात मुकम्मल गौर से सुनो ना। इमाम अबू दाऊद ने कौन सा बाब है, बाब कौन सा पढ़ लें भाई आप? जी आप बाब वही बाब जो आपने हदीस पेश की है अबू दाऊद की
823 वाली हदीस, उसकी सनद पढ़ रहा हूँ मैं। अरे बाप का नाम क्या है मेरे भाई, आप पढ़ लो, बाप का नाम देख के बता दो ताकि हमको आसानी हो जाएगी ना। तो 823 नंबर हदीस कौन से बाप में पढ़ी है? नहीं हमें तो पता है, हम बता देंगे, आप इनकार कर दो आपको नहीं पता। आप कहीं की व्हाट्सएप की या फेसबुक की पोस्ट पढ़ के आप उसके ऊपर कलाम कर रहे हो, आपके पास खुद ही किताब नहीं है। आप मुझे 1 मिनट सुनिए, व्हाट्सएप और फेसबुक आपने नाम लिया करके बता रहा हूँ आपको। व्हाट्सएप और फेसबुक के अगर मैं पढ़ भी रहा हूँ, आप जैसा बोल रहे हैं मैं पढ़ भी रहा हूँ, तो आप उनके मुकल्लिद हो गए, आप उनके मुकल्लिद हो गए। इमाम अबू दाऊद ने अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अन-नुफैली रहमहुल्लाह से, उन्होंने मोहम्मद इब्ने सलामा से, उन्होंने मोहम्मद बिन इसहाक से, उन्होंने मकबूल रहमहुल्लाह से, और वो अन से रिवायत कर रहे मोहम्मद बिन रबी रहमहुल्लाह से। अब आप सही है। देखिए मोहम्मद बिन इसहाक को आप लोग कहते हैं कि ये जो है मतलब ये मुदल्लिस है, मोहम्मद बिन इसहाक को आप लोग कहते हैं। अच्छा, अब आप सही आए, आप पूछिए आप अपना सवाल। हदीस नंबर 823 अबू दाऊद की जो रिवायत आपने पेश की है, हाँ, बाप का नाम है किताबुल सलात। आप पढ़कर सुनाइए, उसमें मोहम्मद बिन इसहाक नहीं है? नहीं है ना, तो उसी को आप बोल रहे हैं ना मुदल्लिस है। नहीं, मैं मकबूल रहमहुल्लाह को कह रहा हूँ। अरे वो मुदल्लिस कैसे हो सकते हैं मेरे भाई? हाँ, मोहम्मद बिन इसहाक के ऊपर जो कलाम है जो उसको पेश कीजिए जरा। मैं अभी तो मकबूल रहमहुल्लाह पे जरा पेश कर रहा हूँ ना, मोहम्मद बिन इसहाक पे तो पेश करूंगा इंशाअल्लाह। उनके ऊपर कोई जरा नहीं है मेरे भाई, उनके ऊपर कोई जरा नहीं है, मोहम्मद बिन इसहाक के ऊपर ही है खाली जरा। अरे मैं मकबूल रहमहुल्लाह से बात कर रहा हूँ, आप मोहम्मद बिन इसहाक पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो? मकबूल रहमहुल्लाह पर जरा है कि वो अरे अजीब मेरे भाई, जिसके ऊपर जरा नहीं है उसको अच्छा क्यों बताइए। जो ये जरा है ये आपको आपके कौन बता दी? हाँ मैं बता रहा हूँ ना कहाँ कहाँ है, आप मुझसे उसके स्कैन पेजेस ले सकते हैं। तबकातुल मुदल्लिसीन सफा नंबर 46 पे मकबूल रहमहुल्लाह को कहा गया। भाई हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है, तो क्या उनको नहीं मालूम था? भाई हाफिज इब्ने हजर सफा नंबर 1। अरे पढ़ लिया, सफा नंबर पता है मेरे भाई, जो गूगल की पोस्ट देख के तुम फटाफट पढ़ रहे हो ना, ये सब काम किसी और के साथ करना जरा है भाई। इब्ने हेलो, हाँ बोलिए ना भाई। जो आपके जो मतलब भाई वो चोटी के आलिम है भाई हाफिज इब्ने हजर, उन्होंने इस हदीस को सही कहा है, तो क्या उनको नहीं मालूम था कि जो मतलब ये हदीस है इसमें ये रावी है वो मुदल्लिस है? हाफिज इब्ने हजर ने कहा है, कौन सी किताब में कहा हजरत? अपनी किताब में कहा है मेरे भाई तेराम में, फतहुल बारी में। और मौलाना अब्दुल हई, मैं लिख के ले रहा हूँ, मौलाना रहमहुल्लाह ने, 1 मिनट सुनिए, हाँ हजर रहमहुल्लाह ने इसको सही कहा है, हदीस को सही कहा है, और मौलाना अब्दुल हई लखनवी ने इसको सही कवि सनद कहा है। कौन सी? आपने जो सनद अभी पढ़ी है, मैंने जो सनद पढ़ी है वही सनद को हजरत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई तो आपके ऊपर किरात भारी हो गई। जब आपने सलाम फेरा तो फरमाया कि क्या तुम लोग भी इमाम के पीछे कुछ पढ़ते हो? तो रावी कहते हैं कि हमने कहा कि हाँ ए अल्लाह के रसूल, जो आप पढ़ते हैं वो हम भी पढ़ते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम लोग कुछ मत पढ़ा करो सिवाय सूरे फातिहा के, क्योंकि वो नमाज ही नहीं जिसमें सूरे फातिहा नहीं पढ़ी जाती। अबू दाऊद किताबुल सलात हदीस नंबर 823। और जो ये हदीस है भाई ये बिल्कुल सही हदीस है, इसकी सेहत पे कोई भी शक और शुबा नहीं है, क्योंकि इसको तिरमिजी और दारकुतनी ने भाई हसन कहा है और बैकी ने सही कहा है और हाकिम ने भाई जो एक ही बताइए, इतने बड़े बड़े लोग उसको हसन कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सनद को कभी बता रहे हैं, आप आ गए हो, आपको आता जाता कुछ नहीं, आप उसके ऊपर कलाम कर रहे हो। मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, डूब पड़ना चाहिए कि आप अपने आप को मुकल्लिद कहते हो, उसके बाद लोगों की सनद पे कलाम करते हो। हाँ मेरे भाई, इमाम के पीछे सूरे फातिहा पढ़ना पड़े, जो नमाज में सूरे फातिहा नहीं पढ़ता
उसकी नमाज नाकी से नाकी से नाकी से, और ये मैंने नहीं अल्लाह के नबी ने कहा है। और जो आपने जो आयत पेश की थी कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो इस आयत से अल्लाह के नबी ने सूरह फातिहा को खास कर दिया। अब बताइए आप कर दिया जी भाई, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए, अगर आप इसको इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की दलील बना रहे हैं तो इसमें से अल्लाह के नबी ने सूरह फातिहा को खास कर दिया। और कहाँ खास किया? अरे मेरे भाई, हदीसों से पता चल रहा है ना कि अल्लाह के नबी ने खास कर दिया। अबू दाऊद की, तिरमिजी की जो हदीस है उसमें मकबूल रहमाहुल्लाह है, 6 हदीसों के 6 किताबों के हवाले दिया है आपको मैंने, उसके अंदर उनको मुदल्लिस कहा गया है। और आप ही के तो यही तो मैं कह रहा हूँ मेरे भाई, तिरमिजी साहब को नहीं मालूम था, बैकी साहब को नहीं मालूम था, आपको मालूम चल गया बाद में। आपकी बात होगी, इनको क्यों नहीं मालूम था मेरे भाई, ये बताओ। 1 मिनट सुनिए हजरत, आपकी मतलब जो हदीस को मतलब वो बयान कर रहा है उनको नहीं मालूम है, और 1438 साल बाद आप कैसे जो जाहिल लोग हैं, मेंटल लोग हैं, उनको मालूम चल गया कि इसके ऊपर कलाम है। वाह वाह मेरे भाई, आप अपने आप को कहते हैं कि हम मुकल्लिद है, तो मुकल्लिद का काम है इमाम के कौल को चुपचाप मान लेना। अब आपकी इतनी हिम्मत हो गई कि आप वो हदीसों के ऊपर कलाम करेंगे, उसकी सनद पे एतराज करेंगे, मतन में खींचतान करेंगे। भाई इस काम को करने का भाई मैं आपसे इतनी देर से एक ही सवाल कर रहा हूँ कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, यहाँ खामोशी का माना क्या है मेरे भाई? हो गया, आपकी बात मुकम्मल हो गई। खामोशी का माना क्या है? अब हम आपको भागने देंगे नहीं, आपकी मुंडी हमने पकड़ ली है। आप लोगों को बहुत मतलब भाई वो बेवकूफ बनाते हैं। आप जवाब देने ही नहीं दे रहे, आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप कभी इधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, कभी उधर भागते हो। भाई जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश हो, तो खामोशी का माना क्या है? जो पता करके बताओ। आपको हवाले दिया है 6 किताबों के हवाले मैंने आपको अल्लाह के नबी की हदीस बता दी है। आप मुझे हवाले दीजिए कि हाफिज इब्ने हजर ने फतुल बारी के कौन से सफे में कहा? मेरे पास मैं लाइब्रेरी में वो फतुल बारी उठा रहा हूँ, बोलिए। अरे मेरे भाई, हम पहले तो ये तो बात आप बीच में लेके आए ना, ये तो आप बीच में लेके आए ना इस बात को। मैंने तो अपनी बात की स्टार्टिंग की थी कि ला सलाता उसकी नमाज नहीं तो किसकी नमाज नहीं। आप मेरे एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। फतुल बारी मेरे हाथ में, बोलिए सफा नंबर है। सफा नंबर बोलिए, मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ, फतुल बारी मेरे हाथ में है, सफा। अरे तो याद थोड़ी ना रहता है मेरे भाई, कोई वो थोड़ी ना डॉक्टर जाकिर नायक जो पेज नंबर, सफा नंबर, वर्ष नंबर, चैप्टर नंबर, आयत नंबर सब हमको याद हो। अजीब हो मेरे भाई, तुमको याद है क्या सब कुछ? नहीं काफी है कि वो सुनी सुनाई बात पर अमल कर ले। अरे तो सुनी सुनाई बात क्या मेरे भाई, पढ़ी हुई बात है मेरे भाई। सुनी सुनाई बात तो गूगल की बात तो तुम पढ़ के बात कर रहे हो ना। तुमसे इमाम अबू दाऊद रहीमुल्लाह की हमने किताब का बाप पूछा तो तुम्हारे पास किताब थी, तो तुमने बाप का नाम क्यों नहीं बताया? इससे साबित हो रहा है कि तुम कहीं के कोई मैसेज है उसको पढ़ पढ़ के तुम बात करते हो। तुम्हारे पास किताब है नहीं ओरिजिनल, तुम खाली बातें मार, तुम यहाँ बैठे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हैं, इधर बैठे हैं, कौड़ी का इल्म नहीं है, करोड़ों की बात करते हो, लोगों को परेशान करते हो। लाइब्रेरी में बैठा हूँ। अरे लाइब्रेरी में बैठे हो तो मेरे भाई तुम उठाओ मेरे भाई बुखारी शरीफ उठाओ, किताबुल अजान खोलो, हदीस नंबर 756 खोलो और मुझे पढ़ के बताओ कि ला तलाता यानी कि उसकी नमाज नहीं। तुम किताब सुफियान बिन ओयैना तुम्हारे से ज्यादा जानने वाले, वो कह रहे अकेले नमाजी के लिए है। अच्छा, ये बातें ना करो मेरे सामने। अबू दाऊद उठाओ, है आपके पास में अबू दाऊद? आपके पास बुखारी है ना इस समय? जी बुखारी भी है, अबू दाऊद भी है। आपके पास बुखारी है कि नहीं? जितना पूछ रहा हो उतना जवाब दो ना मेरे भाई। तुम अबू दाऊद पे क्यों भाग रहे हो? मेरे सामने आपके पास है ना? तो ला तलाता उसकी नमाज नहीं तो किसकी नमाज नहीं बताओ जरा। आपने पेश की है उसकी नमाज नहीं किसकी? अब फिर भागे अबू दाऊद पे। मेरे भाई बुखारी पे बात करो ना मेरे भाई। बोलिए बोलिए बुखारी पे आप इधर भाई ला तलात भाई, इससे मैं आपको नहीं भागने दूंगा। आप कहाँ हो? मैंने मुंडी पकड़ ली आपकी। भाई ला तलाता यानी कि उसकी नमाज नहीं तो किसकी नमाज नहीं? मैं आपसे इतनी देर से पूछा हूँ किसकी नमाज नहीं। आपने क्या समझा इससे? भाई मैंने जो समझा है, जो उसूल होता है मुहद्दिसीन का और जो हदीस को समझने का उसूल होता है वो ये होता है कि अगर किसी हदीस में कोई आम और खास का मतलब भाई वो ना हो मादा, तो उसको हम लोग आम के तौर पे ही लेंगे। क्यों? जैसे इसमें आया है कि ला सलाता उसकी नमाज नहीं, लेकिन किसकी नमाज नहीं इसके बारे में तो आया नहीं, तो ये आम हो जाएगा।
ला, एक मिनट सुनिए, इसमें ला सलात आम नहीं है, मन आम है, समझ रहे हैं आप बात को? अरे उस पर बाद में आएंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ला सलाता उसकी नमाज नहीं तो किसकी नमाज नहीं? यहाँ पे किसकी के बारे में तो आया नहीं। वही पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। तो मैंने ये समझा है कि अगर इस हदीस में ये नहीं आया है कि किसकी, तो सबके बारे में आ रहा है, चाहे वो इमाम हो, मुक्तदी हो, मुनफरिद हो, अकेले पढ़े, सबके साथ पढ़े, फर्ज पढ़े, नफिल पढ़े, सुन्नत पढ़े, जनाजा पढ़े, कहीं पे भी पढ़े, छोटा पढ़े, बड़ा पढ़े, बच्चा पढ़े, बूढ़ा पढ़े, जवान पढ़े, औरत पढ़े, मर्द पढ़े, उसकी नमाज ही नहीं होगी जो नमाज में सूरे फातिहा ना पढ़े। अच्छा, और अकेले। और एक चीज आपको बता दें, एक चीज और आपको बता दें, उसके बाद फिर आप आराम से बोलिएगा। बुढ़ा पढ़े, बच्चा पढ़े, जवान पढ़े, औरत पढ़े, मर्द पढ़े, ये आम हुकुम है, आम हुकुम है मेरे भाई, आम हुकुम है ये हदीस में मेरे भाई। हाँ, अरे हदीस में उसकी नहीं हुई तो किसकी नहीं हुई?